बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ुरआनु हयाती। The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ دورہ قرآن میں آج 98 سپارہ کا رخ کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اس میں جو بھی عمل کی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ 18 سپارے کے شروع میں جو ہے وہ سورۃ المؤمنون ہے، بہت خوبصورت سورت ہے، اور بالکل بھی دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ یہ جو سورت ہے یہ مکہ کے بالکل درمیانی دور میں جو ہے وہ نازل ہوئی تھی، جب درمیانی دور بالکل تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ دشمنوں کی نا بہت زیادہ تعداد ہو گئی تھی، اور بالکل کشمکش شروع ہو چکی تھی بہت ہی دشمنوں کے بیچ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں، ظلم ستم مطلب بہت زیادہ ہونے لگے تھے اس طریقے سے۔ اور پھر قحط بھی اسی دور میں جس دور میں یہ جو صورت نازل ہو رہی تھی، تو قحط بہت زیادہ جو وہ ہوا تھا اس دور میں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی دور میں ایمان لے کر آئے تھے الحمدللہ۔ اوکے، پھر دیکھیے کہ اگر اس کا میں بیسک ٹاپک اگر آپ کو بتاؤں، بیسک ٹاپک اتباع رسول، آپ کو پوری صورت میں یہ انداز ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو۔ کیوں ایسا؟ کیوں دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے والے، اسے پتہ چل رہا ہے کہ کیسے وہ ہوتے ہیں۔ شروع کی 10 آیتیں جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، اور آپ کو پرپس آف لائف بتاتے ہیں کہ ایک بندے مومن کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، کس طریقے سے اس کو گزارنی چاہیے۔ کہ دیکھیں سورۃ البقرہ میں ہم نے دیکھا تھا 3 گروہ، شروع میں ایمان والے، پھر اس کے بعد منافق، پھر اس کے بعد جو ہے وہ یعنی کافروں کا گروہ تھا، منافقوں کا گروہ تھا۔ تو دیکھیے سورہ جو پہلا گروہ تھا مومن کا، وہ الحمدللہ ہم اسے 18ویں سپارے میں دیکھ رہے ہیں۔ آگے ہم سورہ منافقون، سورہ کافرون بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اوکے، تو آیتوں کے اکارڈنگ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میسج دینا چاہتے ہیں مجھے اور آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو المعرضون۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے۔ بے شک فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ اب یہ ایمان والے کون ہیں؟ ان کی پوری ڈیفینیشن آیت نمبر 10 تک جو ہے وہ 9 اور 10 تک جو ہے ان کی ڈیفینیشن دی گئی ہے ڈیفینیشن۔ تو ہم اپنے آپ کو جانچیں، کیا واقعی میں اللہ کی نظر میں ایک مومنہ ہوں؟ اللہ کی نظر میں کیا میں اچھی مسلمان ہوں؟ اور دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی نا، وہ در حقیقت پوری اسی کے اوپر تھی۔ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی واقعی ایک کامیاب مومن کی زندگی تھی۔ اس کا راز کیا تھا؟ ان آیتوں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے۔ آپ بھی اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتی ہیں تو پھر انشاءاللہ ہم ان آیتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اوکے، پھر اس کے بعد دیکھو مکمل کامیابی جو انسان چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اس کو ایمان اپنے اندر لانا پڑے گا، اور وہی ایمان والا کامیاب ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا۔ مومن، بندہ مومن کہا ہی اسی کو جاتا ہے جو صرف اور صرف اللہ کے احکامات کتاب سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع وہ سنت سے کرتا ہے، دیٹس اٹ۔ تیسری کسی چیز کو فالو نہیں کرتا ہے، جب جا کے وہ مومن کی کیٹیگری میں آتا ہے۔
उसके बाद देखिए कि अब जो यहाँ पर है आयत नंबर 1 to 11 और 1 to 10 जो मैं आपको बता रही हूँ, अल्लाह ताला ये बता रहे हैं हमें सिर्फ कि असल कामयाबी क्या है। क्यों ऐसा पता है आपको? क्योंकि मक्का वाले जो थे ना, वो अपने बहुत ज़्यादा माल, बहुत ज़्यादा औलाद पर बहुत मान करते थे। वो क्या सोचते थे कि दुनियावी ऐशो आराम ही जो है वो कामयाबी का नाम है, उसे ही कामयाबी कहा जाता है। लेकिन इन आयतों में बिल्कुल उसके अपोजिट अल्लाह ताला बात कर रहे हैं। ईमान वाले को क्या कहते थे ये मुश्रिकान मक्का, मक्का वाले, क्या फ़ायदा इनका ईमान लाकर, क्या फ़ायदा है? तो अल्लाह ताला ने उनकी बातों का जवाब दिया है कि आओ तुम्हें मैं बताता हूँ फ़ायदा क्या है ईमान लाने का। तो इन आयतों में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि क्या फ़ायदा है ईमान लाने का। ठीक है, इंशाल्लाह देखते हैं। फिर इसके बाद देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह अल मोमिनीन की 10 आयतें जो हैं, ठीक है, आयतों पर जो कुछ भी यानी इसके मुताबिक जिस किसी ने भी ज़िंदगी बसर कर ली तो डेफिनेटली अल्लाह ताला उसको जन्नत देगा। डेफिनेटली अल्लाह ताला उसको जन्नत देंगे। और फिर अल्लाह ताला ये बता रहे देखो हमें कि असल में जिस बंदे में खूबियाँ होंगी ना, तो वाकई उसकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। अब इतनी बातें सुनने के बाद आप भी इंतज़ार में होंगे, क्या है वो बातें? मैं भी तो अपनी ज़िंदगी में लाकर देखूँ, जिन आयतों की तारीफ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी की है, जिन आयतों की तारीफ़ अल्लाह ताला ने इतनी की है, तो वो आयतें ये हैं, ईमान वाले वो होते हैं अल्लज़ीना हुम सलातिहिम खाशिऊन, वो लोग वो जो अपनी इबादतों में खुशू रखते हैं, खशियत रखते हैं। खशियत रखते हैं यानी कि एक बंदे मोमिन अल्लाह से ऐसा खौफ रखता है, ऐसा नहीं कि मतलब से कुछ बुरे हालात आ गए हैं और उसके ऊपर आजमाइश आ गई तो अल्लाह का डर रखता है, नहीं। एक बंदा मोमिन जो है अपनी नमाजों में खुशू और खुशू रखता है, बिल्कुल अपनी नमाजें, अपनी इबादतें, अपने हर चीज़ यानी उसकी कल्बी इबादत हो, जिस्मानी इबादत हो, कौली इबादत हो, बड़ाई मानने की बात हो, दिल में किसी की मोहब्बत बिठाने की बात हो, या जिस्म से कोई इबादत कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए होती है। उसकी जो इबादत का तरीका है अल्लाह के सामने झुकने का, वो किसी और के सामने नहीं झुकता है। और अपनी दिल से, अपनी ज़बान से बड़ाई किसी शख्सियत की नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की बड़ाई करता है। और ऐसा शख्स जो नियामतों में भी और आजमाइशों में भी, दोनों में ही अल्लाह का डर रखता है। अगर उसको नियामतें मिलती हैं तो ये डर रखता है कि अल्लाह ताला अगर मैंने इसकी नाशुक्री की तो ये मुझसे छीनी जाएगी। आजमाइशों में किस तरीके से वो डर रखता है अल्लाह का कि अगर मैंने इन आजमाइशों में अल्लाह को छोड़कर किसी और की तरफ रुख किया तो मेरी आखिरत मेरे हाथ से जाती रहेगी। और इनकी क्वालिटीज क्या है? वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, और वो जो वो फजूल चीज़ों से दूर रहते हैं। लग़्व हर वो चीज़ होती है जो फजूल हो, जिसका कोई हासिल नहीं है, जिसके करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे कामों के करने की जो आज के कुछ लोग करते हैं और उसका हासिल भी कुछ नहीं है। ये देखिए कि हर वो चीज़ जो लोगों में, हर वो चीज़ भी जाती है, इसको ऐसा भी डिफाइन किया गया जो आपको अल्लाह और उसके रसूल से दूर कर दे, अल्लाह की इबादत से दूर कर दे, आपको यानी कि अल्लाह के हुक्म मानने से दूर कर दे, जानबूझकर नहीं, बिल्कुल ऐसे ही आप जो है वो नाफरमानियां करते चली जाएं अल्लाह की। और ये देखिए कि ये बहुत फैक्ट है, जब इंसान नमाजों के ज़रिए, इबादतों के ज़रिए अंदर से अपने आप को चेंज करता है तो ज़ाहिर भी उसका बहुत ज़्यादा बदल जाता है। किस तरीके से? कि वो लघु बेकार चीज़ों से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करता है। ये ज़ाहिर है कि वो बुरे लोगों से अपने को दूर करता है, बुरे अमाल से अपने आप को दूर रखता है, और यानी कि बुरे दोस्त नहीं बनाता है, और समाज जिन बुराइयों में पड़ा हुआ है वो उसमें पड़ने की कोशिश नहीं करता है। बहुत खूबसूरत जुमला है ये, बहुत ही खूबसूरत। असर आपकी आपकी ज़िंदगी में अगर नमाज का बेहतर असर होता है तो डेफिनेटली ये चीज़ें भी आपके अंदर आती हैं। अगली क्वालिटी क्या बताई जा रही है इनकी, ठीक है, अगली क्वालिटी। और ये भी देखिए कि लघु में वो चीज़ें भी आएंगी, देखो कि हर वो चीज़ जो ईमान वाले की यानी मकसद भी नहीं होता है उसका, उसको हासिल करने का, और वक्त बहुत ज़ाय करता है। देखिए ज़रा, अब आप सोचिए कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे आपके वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाय होते हैं। ये सारी चीज़ें लघु में जाती हैं। बंदे मुमिन सोचता है नहीं, मेरी ज़िंदगी बहुत कीमती है,
मैं एक इम्तिहान के कमरे में हूँ, मुझे अगर ये इम्तिहान के कमरे में मुझे ये पर्चा हल करना है जो अल्लाह ने मुझे दिया है, और अगर मैंने यहाँ वहाँ देख कर बेकार चीज़ों में अपना वक्त ज़ाय कर दिया तो फिर मैं तो हलाक हो जाऊंगा। क्या नंबर मुझे मिलेंगे अल्लाह के पास। और ये ऐसे होते हैं, और अल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और ये ऐसे होते हैं कि अपनी ज़िंदगी जैसे कि पाक ज़िंदगी गुजारते हैं, पाक कामों पर अपनी जो ज़िंदगी वो गुजारने वाले होते हैं। जिस तरीके से इंसान अपने माल को पाक करता है ज़कात देकर, उसी तरीके से ये अपने नफ्स का तज़किया करते हैं। माल की ज़कात अदा करते करते नफ्स का भी जो है वो ज़कात अदा करते हैं। किस तरीके से? अपने अपने जो यानी कि जिस्म को पाक करके, दिल को पाक करके, दिल को अपने हर चीज़ के, हर बुराई से, हर शख्सियत की मोहब्बत से पाक करके जो है वो अमल करते हैं। वो यानी जो ज़कात के तरीके पर ये अमल करते हैं, इन द सेंस ये है कि देखिए अपने नफ्स का तज़किया करते हैं, बुरी चीज़ों को अपने अंदर से निकालते हैं और अच्छी चीज़ों को अपने अंदर लेकर आते हैं। हर उस चीज़ को निकाल देते हैं जिससे अल्लाह उसके रसूल को जो है वो दुख होगा, तकलीफ होगा, या फिर उनको जो है वो यानी कि नाराज़गी होगी और उनके हुक्म के खिलाफ कोई काम होगा। हर वो चीज़ करने की कोशिश करते हैं जिसका हुक्म अल्लाह ने उसके रसूल ने दिया है। उसके बाद यानी बेकार चीज़ें जो है वो उससे बिल्कुल किनारा कश होते हैं इस तरीके से। ओके, फिर उसके बाद वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, इन इन ये जो अमल उन्होंने किया, इबादत में खशियत, फिर लघु बातों से दूर हो जाते हैं, अपने नफ्स का तज़किया करते हैं, नफ्स को पाक करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये होता है कि अपनी इज्जत की वो बहुत ज़्यादा हिफाजत करते हैं। देखिए जब कोई बुरी चीज़ देखेगा नहीं तो फिर डेफिनेटली बुरी चीज़ की तरफ जाएगा भी नहीं, लघु बातों की तरफ जाएगा भी नहीं, और उस ऑटोमेटिकली जो है वो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करेगा। ना बुरी चीज़ देखेगा, ना शर्मगाह उसकी जो है वो किसी भी चीज़ का तकाजा करेगी। बुरी चीज़ें इंसान देखता है तो वो उसके ख़यालात में आते हैं, उसके ख़यालात में आते हैं तो उसको अमल में लाने की कोशिश करता है। लेकिन एक बंदे मोमिन इन तमाम चीज़ों से पाक होता है, ना बुरी चीज़ देखता है, ना बुरे अमल करता है, वो इस तरीके से अपनी शर्मगाह की हिफाजत करता है। हाँ, लेकिन उसके बाद ऐसा होता है कि ऐसा भी नहीं कि एकदम राहिब बन जाए। क्या बताया गया? इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, सिवाय उनके जो जोड़े हैं, यानी अपने जोड़ों के सामने जो है वो जिस यानी अपनी ज़रूरत जिससे अल्लाह ने उससे पूरी करने की दी है, कि तुम्हारी जो ज़रूरत है, तुम्हारी सेक्सुअल जो ख्वाहिशात है तुम्हारी, उसको तुम अपनी बीवी से पूरी करो, या जो तुम्हारे मिल्कियत में है। ये तो खैर ये चीज़ अभी है नहीं, तो इस पर तो कोई ऐसी बात ही नहीं कर सकते। उस वक्त जायज़ था ये कि कनीज़ औनिया वगैरह जो माल गनीमत में आ जाती थी तो निकाह करके भी और ऐसे रख के भी, और खरीदो फरोख्त चूँकि उस दौर में जायज़ था तो लोग खरीदो फरोख्त करते थे इंसानों की भी। लेकिन आज इस चीज़ पर कोई ज़रूरत नहीं बात करने की। लेकिन ऐसा शख्स जो मोमिन, सच्चा मोमिन होता है, वो अपनी ख्वाहिशात, जिस्मानी ख्वाहिशात अपनी बीवी के अलावा किसी से पूरी नहीं करता है, और बेशक इन पर कोई मलामत भी नहीं है। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि ये अपनी बीवी से जैसे चाहे वैसे ख्वाहिशात पूरी करें, और इन पर कोई मलामत भी नहीं है। और ऐसे भी नहीं होते कि बिल्कुल राहिब वाली ज़िंदगी गुजारे, सन्यास वाली ज़िंदगी नहीं गुजारते हैं। अल्लाह ताला बोल रहे हैं फिर जो कोई चाहे इसके अलावा कोई रास्ता, तो यही जो हद से गुजरा हुआ है, यानी अपनी जायज़ ख्वाहिशात को वो बीवी को छोड़कर किसी और से अगर पूरी करता है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो बिल्कुल हद से जो है वो गुजरा हुआ है। ये अल्लाह ताला बोल रहे हैं। फिर ये देखिए कि और इस तरीके से ये कि और अगर कोई बज़ाहिर आपकी नज़र में बहुत ज़्यादा दीनदार है, लेकिन वो अपनी बीवी को छोड़कर किसी और से ज़रूरत पूरी करता है, तो फिर वो बंदे मोमिन कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला तो बोल रहे हैं किसी सिपारे के शुरू में कि बेशक नमाज जो है वो तुम्हें बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। तो आप अक्सर आपने देखा है कि कितने लोग तो नमाज पढ़ के भी कितने बुरे काम करते हैं। तो ये देखिए कि उसकी नमाज उस दर्जे की नहीं है जो उसको बुराई से रोक सके। इसमें गलती नमाज की नहीं है, गलती बंदे की है कि वो उस दर्जे की खुशू और खुशू वाली नमाज अदा नहीं कर रहे हैं कि अल्लाह उसे बुराई से बचाए। तो इसके बाद अगली जो क्वालिटी इनकी बताई जा रही, ओके, वल्लज़ीना ली अमानतिहिम व अहदिहिम राऊन, और ये वो लोग होते हैं जो अपनी अमानतों और अपनी अहद व पैमा की बहुत ज़्यादा निगरानी करते हैं। किस तरीके से? देखिए कि ये नमाज अल्लाह की अमानत है। ओके,
ایک جسمانی خواہشات جو ہوتی ہے وہ بیوی کی امانت ہوتی ہے کہ اس کا شوہر سے غصے کرے. پھر اس کے بعد تزکیہ نفس جو کرنا وہ اپنے آپ میں امانت ہے. طرح طرح بول رہے ہیں جب یہ کوالٹیز ان کے اندر ہوتی ہے تو وہ اپنے عہد کو جو اس نے اللہ سے عہد کیا ہے اور جو بندوں سے عہد کیا, آپ دیکھ رہے ہیں اس میں انسان اللہ سے بھی عہد کی بات آ گئی ہے, خود سے عہد کی بات آ گئی ہے, بندوں سے عہد کی بات آ گئی ہے, سب کی وہ بہت زیادہ حفاظت کرتا ہے, نگرانی کرتا ہے. دیکھیے بہت اچھی بات ہے یہ. اور دیکھیے یعنی کہ ایسا بندہ نہ صرف اللہ کے معاملات میں خیانت اور نہ لوگوں کے معاملات میں خیانت, کسی بھی طریقے سے کہیں بھی خیانت نہیں کرتا ہے. دیکھیے کتنی خوبصورت زندگی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے, اور ایسی زندگی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے خیانت نہیں کی, نہ اللہ کے کسی بندوں سے, نہ اللہ کے حکم نے, نہ اللہ کے بندوں کے معاملات میں. دیکھیے کتنی پیاری بات ہے. اب اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اب اگلی جو آیت ہے والذین هم علی صلاتهم یحافظون, اور وہ لوگ وہ اپنی عبادتوں کی حفاظت کرتے ہیں. ابھی دیکھیے کہ اوپر بھی صلات آیا تھا, نیچے بھی, لیکن وہ سنگولر لیول پہ آیا تھا. صلاتہم از اے سنگولر, یعنی انڈیویجول بھی اپنی عبادت کی حفاظت کرتے ہیں, اور اس کے بعد اجتماعی طور پر بھی وہ نماز کے بہت زیادہ حفاظت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیے کہ یہ شروع میں بھی اور آخر میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے, مطلب اپنی صرف نماز نہیں, اپنے گھر والوں کی, آس پاس والوں کی, یہ نہیں دیکھتے کہ نکڑ پہ بیٹھ کے لڑکے لوگ کیا کر رہے ہیں, بلکہ وہ اگر نماز کی طرف ان کی رغبت نہیں ہو رہی تو ان کو رغبت دلاتے ہیں. اور یعنی اپنے ساتھ ساتھ سماج کی بھی بہت زیادہ فکر کرتے ہیں, دوسری کی نمازوں کی بھی انہیں بڑی فکر رہتی ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے یہ ہے وہ کوالٹی والے کہ ہم وارث بنائیں گے جنہیں جنت الفردوس کا, وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. در حقیقت اوکے اتنی بات ہو گئی, بتائیے ذرا آج امت محمد یا کتنے زور و شور سے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس دے دے, دعاؤں کے بیس سے آپ کو جنت الفردوس کبھی نہیں ملے گی, یقین کریے. کسی کو دعاؤں کے بیس پہ نہیں ملنے والی. ایک پیکج اللہ نے دے دیا ہے, اٹس اے پیکج آف جنت الفردوس. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ پیکج ہے, تم کو کرنا ہی کرنا پڑے گا. یہ ٹرمس اینڈ کنڈیشنز تم اپلائی کرو اپنی زندگی میں, دین میں تمہیں جو ہے جنت الفردوس کا پورا پیکج دے دوں گا. اور وہ پیکج ناٹ فار ٹیمپرری, از فار آلویز, ہم فیہا خالدون, وہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. آپ کوئی پیکج کہیں لیتے ہو, کہیں گھومنے جا رہے ہو, ٹور پر جا رہے ہو, اس کی ٹرمس اینڈ کنڈیشنز آپ کو پوری کرنی پڑتی ہے نا. سورت کا انداز بہت ہی خوبصورت ہے. کامیاب زندگی کا راز اللہ نے بتا دیا کہ ایک بندے مومن کی زندگی کامیاب کیسے ہو سکتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو ہے وہ تخلیق کی طرف جو ہے کچھ توجہ تدبر کروانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. پھر زمین اور آسمان کی بناوٹ کی طرف, پھر اس کے آگے آگے ہم جو ہے انبیاؤں کے کچھ قصے انشاءاللہ پڑھیں گے. سلسلہ وہی ہے پیچھے جو چلا آ رہا ہے. اوکے, نیکسٹ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 12 میں بتا رہے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَاسَةٍ مِنْ طِينٍ, اور در حقیقت ہم نے انسان کو پیدا کیا, ہم نے پیدا کیا کیسے, خلاصے مٹی سے, یعنی ایک دم بالکل خلاصے والی مٹی سے, ایک دم جو ایسی مٹی, صاف ستھری مٹی سے اللہ نے جو ہے وہ پیدا کیا. آپ نے اگر کبھی مٹی ایسی دیکھی ہوگی جو سوکھنے کے بعد ایک دم بالکل اس میں دراریں پڑ جاتی ہیں. اوکے, جیسے کمہار جو مٹی یوز کرتا ہے اس کو ایسی چھوڑ دے تو کیسے دراریں پڑ جاتی ہے جب تک اس کا استعمال نہ کر لیں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ایسی مٹی سے ہم نے پیدا کیا. اتنا زور دے کے دیکھیں ذرا کہ تم خود ہی نہیں پیدا ہو گئے. آج انسان دنیا میں اتنا بڑا بنتا پھرتا ہے تو تم دنیا میں خود نہیں آ گئے, بلکہ ہم نے تمہیں پیدا کیا. کس طریقے سے, شروعات تمہاری مٹی سے کی, پھر ہم نے بنایا اس کو حقیر پانی کی, اللہ تعالیٰ نے ایک نطفے کی حالت دی اس کو, اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ جگہ پر جو ہے وہ رکھ دیا. محفوظ جگہ, وہ نطفہ محفوظ جگہ ماں کے پیٹ میں جو رحم ہوتا ہے وہ ہے. پھر ہم نے شکل دی, اس حقیر پانی سے تمہیں شکل دی. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اوکے, پھر اس نطفے کو ہم نے جو ہے خون کا لوتھڑا بنا دیا, اور ہم نے شکل دی خون کے لوتھڑے کو, ملائم گوشت والی بوٹی کی شکل دی تھی, اور ہم نے شکل دی گوشت کی بوٹی کو ہڈی کی شکل دی تھی. پھر چڑھایا ہم نے ہڈی پر گوشت, پھر اٹھا کھڑا کرایا ہم نے اسے پیدائش کے آخری مرحلے میں. تو بابرکت ہے اللہ کی ذات, بہت بہترین تخلیق کرنے والا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک سائنسداں جس نے یعنی کہ یہ ڈسکور کیا تھا کہ حمل کے اندر کیا دور چلتے ہیں, کیا چینجز آتے ہیں ٹل ڈیلیوری, اور بڑی اس نے جو ہے وہ اپنے نام روشن کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو سب سے پہلے میں نے اس چیز کو ڈسکور کیا.
جب لوگوں نے اس کو پڑھا کہ کس طریقے سے اندر چینجز آتے ہیں، کیا مرحلے پیش آتے ہیں، تو اسے یہ بتایا گیا کہ یہ تم کیا بتا رہے، یہ تو اتنے سال پرانی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو بتا دیا۔ اور جب اس نے یہ پڑھا نا تو ایمان قبول کر لیا، اس نے اسلام لے آیا۔ کہتا ہے وہ کہ اگر یہ باتیں میں قرآن میں نہیں پڑھتا نا تو میں کہہ سکتا تھا کہ میں نے سب سے پہلے اس چیز کو ڈسکور کیا، اور میں کبھی نہیں مانتا اگر اس کو قرآن میں نہیں پڑھتا۔ اب میں ایمان لاتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے رسول تھے، کہ باقی یہ باتیں سوائے قرآن کے کہیں نہیں مل سکتی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سائنس آج تک تحقیق میں ہے، ایک نطفہ، ایک بوند اس حقیر پانی کا سیل اسپم جو ہوتا ہے وہ ہڈیوں میں کیسے بدل گیا، بال میں کیسے بدل گیا، اور گوشت میں کیسے بدل گیا، آج تک یہ ڈسکور نہیں کر پایا، پتہ ہے آپ کو۔ اور اتنے اس کے بعد پھر ڈائریکٹلی وہ جو ہے ڈیلیوری ہو گئی بچے کی، ختم بات۔ اللہ تعالیٰ کو کیسے مات دینے کی کوشش کرتا ہے انسان، دیکھیے آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے، دیکھیے اصل بات تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں بہترین تخلیق تو میں نے کر دی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، بے شک تم اس کے بعد یعنی تمہاری زندگی کے بعد ضرور مرو گے۔ اتنا کہنا کافی تھا اللہ کا کہ تم مرو گے، اوکے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے نہیں، ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، اور پھر بے شک قیامت کے دن جو ہے وہ اٹھائے جاؤ گے۔ دیکھیے ذرا، یہ ہے انسان، اللہ بتاتے ہیں کہ اپنی تخلیق پر غور کرو، غور کیا کرو، تمہیں کیسے پیدا کیا گیا، پھر تمہیں موت دی جائے گی قیامت کے دن، پھر تمہیں جو ہے وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ دیکھیں اب جو ہے کائنات پہ تدبر کروایا گیا نا، اس کے بعد اب دیکھیں دوسری چیزوں پر انسان کو باقی اپنی پیدائش پہ بہت زیادہ غور کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آیت نمبر 20 آیت نمبر 70 میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَهُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور یقیناً ہم نے پیدا کیا ہے تمہارے اوپر سات تمہارے اوپر جو ہے 7 راستے آسمان کے، تہبت کیسے ہے وہ، یہ ایسے یہ کیا تہ بولتے لیڈس والی، یعنی 7 راستے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تمہارے اوپر بنائے ہیں۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم نہیں تھے مخلوق سے غافل، یعنی ہم سب پیدا کر کے تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ ہم بھول گئے سب کو، نہیں، ہمیں سب یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ہمیں سب یاد ہے، اور ہم نے ہی آسمان سے پانی یہ جو بارش برسائی، اور ایک طے شدہ مقدار کے ساتھ۔ بہت خوبصورت بات ہے، اور ذرا غور کریے گا، یعنی ہر چیز کا ہم نے اندازہ ٹھہرایا ہے، آسمان سے ہم نے اندازے سے پانی جو ہے وہ برسایا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں بھی دیکھیے یہی ٹاپک ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہر چیز کو ہم نے اندازہ دیا ہے، وہاں پر ہر چیز کو اندازے سے ہم نے جو ہے وہ پیدا کیا ہے، دیکھیں۔ اور سب سے خوبصورت بات فَأَسْكَنَّهُ فِي الْأَرْضِ، یہ ہے بہت خوبصورت بات، پھر ہم نے ٹھہرا دیا اس پانی کو زمین میں۔ یہ ہے بات اصل میں، کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو قرآن کی جو بارش ہے نا وہ سب پہ برسے گی، سب پہ برسے گی نا، قرآن فار یونیورسل، قرآن سب کے لیے آیا ہے، سب پڑھتے ہیں اس کو اپنی اپنی زبان میں، لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں بندہ اپنے اندر اتنا ہی لے گا جتنا وہ چاہے گا۔ ہر انسان قرآن سب پڑھتے ہیں لیکن اندر جذب کتنا کر پاتے ہیں، جتنا وہ کرنا چاہے۔ دیکھیے ہر سینے میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اپنے یعنی کہ اپنے ظرف کے مطابق قرآن کا پانی لیتا ہے ہر انسان۔ اب دیکھیے آپ سن رہی ہیں آن لائن، اور اس کے بعد نہ جانے کتنے لوگ جو ہے اس سیم ٹاک کو سنتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو جتنا ظرف ہوگا ان کے اندر، وہ اپنے مطابق قرآن کو اپنے اندر جذب کر لیں گے۔ کچھ لوگ بس یوں ہی سنتے، کچھ لوگ بہت دلچسپی سے سنتے، کچھ لوگ سوچتے نہیں ہمیں کچھ عمل کی بات لینی اس لیے سنتے، کچھ لوگ ارے ثواب ملے گا اس لیے سنتے۔ تو جو جس نیت سے سنے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہی عطا کریں گے۔ اللہ اکبر، دیکھیے مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تو مجھے قرآن کو سن کر اس کو جذب کرنے والا بنا، جس طریقے سے تو بارش کا پانی زمین کو جذب کروا دیتا ہے، تو اس قرآن کے جو پانی کو ہے نا میرے دل کے اندر جذب کر دے۔ جب چیز اندر جذب ہوگی جبھی تو اندر باہر کچھ عمل ہوئے گا نا۔ مزید یہ دیکھیے کہ اگلی آیت ہے وہ جو بہت زیادہ جو ہے وہ خوف والی بات ہے، فوراً پناہ مانگ لیجیے کہ اللہ ایسی باتوں سے میں تیری پناہ میں آتی ہوں۔
اور بے شک ہم اسے واپس لے جانے پر بھی پوری قدرت رکھتے ہیں. دیکھیے ذرا اللہ تعالیٰ بول رہے بارش میں برسات دیتا ہوں تو میں اس پانی کو اس بارش کو واپس لے جانے میں بھی پوری قدرت رکھتا ہوں. کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ مطلب ایک دفعہ میرے دل میں تیری قرآن کا پانی چلا جائے نا تو کبھی اس کو پلٹا کر نہیں لے جانا. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں بہت بڑی بدبختی کی بات ہو جائے گی. اور یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جہاں سے پانی جاتا ہے نا تمہارے اندر وہیں سے پلٹ جاتا ہے. دل کے راستے تم اتار رہے ہو اللہ کی وحی کو اپنے اندر, اللہ قرآن کے بارش کو, اور اسی دل کے راستے نکل جائے گا. کس طریقے سے؟ ایک کوئی بندہ آئے گا اور آپ کو بالکل ایسا کہہ دے گا کہ یہ کیا ہو گیا تمہیں, ایسا کیوں کر رہی ہو, یہ کر رہی ہو, آپ کو خوف دلائے گا, آپ کو ڈر دلائے گا, ایسے مت کرو, ارے اب تم قرآن پہ عمل کرنے لگی ہو, کیا دین کرنے لگی ہو, دین پہ چلو گی, تمہارے رشتے کہیں نہیں ہوگی, تمہارے بچوں کے رشتے کہیں نہیں ہوگی, یہ تم نے اپنے بیٹے کا کیا حال بنا رہی ہے, یہ داڑھی رکھنے لگا ہے, اب تو کوئی اپنی لڑکی ہی نہیں دے گا اس کو. اتنا خوف لوگ دلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جس طریقے سے تمہارے اندر قرآن داخل ہوا تو ویسے واپس چلا جائے گا. ٹھیک ہے ذرا اب آپ یہ دیکھیے کہ غور کروایا جا رہا ہے کائنات پر, غور کر کے اللہ تعالیٰ بول رہے زمین کو جو ہے یہ جو ہے اللہ تعالیٰ پانی دے رہے ہیں, پانی آ رہا ہے جا رہا ہے. بتاؤ زمین کو یہ ٹیکنالوجی کس نے لگائی؟ یہ ٹیکنالوجی کا انسان نے لگائی ہے؟ کس نے لگائی؟ کہاں سے آئی یہ ٹیکنالوجی زمین کے اندر؟ غور کیا کرو, یوں ہی زمین سے گزر مت جایا کرو. مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر اس پانی کے ذریعے ہم نے جو ہے پیدا کیے باغات کھجور انگور کے, تمہارے لیے اس میں بہت سارے قسم کے میوے ہیں جنہیں تم جو ہے وہ کھاتے ہو, استعمال کرتے ہو. اور درخت جو نکلتا ہے تور سینا سے, اگتا ہے چکنائی کے ساتھ, اور وہ سالن اور تیل استعمال کرنے والوں کے لیے, یعنی یہ جو ہے وہ اس کی بات کی جا رہی ہے زیتون. اور جو ہے وہ تور سینا سے جو ایک ایسی یعنی کہ چیز نکلتی ہے جو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ اس کو کھانے کے لیے بھی لوگ استعمال کرتے ہیں. جیسے نارمل ابھی جیسے زیتون وغیرہ اگر لیا جائے تو اس کی آئل وغیرہ سے سالن کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے, اور ایسے بھی زیتون کو کھایا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ مزید کائنات پر غور کروانے دیکھیں, ٹھیک ہے, کرو گے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے دیکھو تم غور تو کرو, سب کچھ تمہیں ملے گا, سب کچھ تمہیں ملے گا, یہاں تک کہ اللہ کی محبت بھی تمہیں حاصل ہو جائے گی. اور ذرا غور کرو, اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ضرور عبرت کی بات ہے. کیا ہے عبرت کی بات؟ ہم پلاتے ہیں تمہیں اس میں سے جو نکلتا ہے اس کے پیڑ سے دودھ, اس کو ہم تمہیں پلاتے ہیں. تمہارے لیے اس میں بہت سے فائدے ہیں اور انہیں تم خوراک کے طور پر بھی حاصل کرتے ہو. اور اس جانوروں پر تم سوار ہوتے ہو اور کشتی پر بھی تم سواری کرتے ہو. دیکھیں ذرا کتنی خوبصورت بات ہے. سورہ نحل میں ہم پڑھ چکے دودھ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گوبر, پیشاب, خون کے درمیان سے خالص اتنا تازہ میٹھا دودھ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو نکال کر دیتے جانور کے اندر سے. اس کے اندر کتنا سسٹم اللہ نے لگا رکھا ہے کہ کبھی آپ دودھ پیتے ہو تو ایک خون کا قطرہ نظر نہیں آتا ہے, نہ پیشاب کی بدبو اس کے اندر سے آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے یعنی کہ خواب میں اگر دودھ پیتا ہے تو گویا کہ وہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ علم عطا کریں گے, اپنی کتاب کی سنت کے علم عطا کریں گے. خوش ہو جائے. ایک تعویل آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتاتے تو میری کوئی ضرورت نہیں تھی آپ کو یہ بتانے کی. تو یہ دیکھیے کہ یہ اتنی خوبصورت چیز ہے, اس کی اگر کسی نے خواب میں دیکھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تعویل بھی کتنی خوبصورت کی ہے. کبھی دودھ کو لے کر یوں ہی پی جایا مت کرو, اس کو دیکھ کر سوچا کرو کہ کہاں سے آیا ہے. آپ سے کوئی پوچھے گا تو بولیں گے مدر ڈیری سے آیا ہے, مہانندا ڈیری سے آیا ہے. نہیں, وہ دودھ کہاں سے آیا؟ بھینس کے پیٹ سے آیا ہے. وہ بھینس جس کو انسان اتنی حقیر نظر سے دیکھتا ہے, چھی موٹی ہے, کالی ہے. کسی اگر موٹی کالی لڑکی کو اگر اس ایگزامپل دیا جائے تو بولے بالکل بھینس کی طرح ہے. آپ کو کیا پتا کہ اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے اور اتنی خوبصورتی سے کیا ہے. پھر ایسی چیزوں سے ہمیں محبت ہوتی ہے جس سے اللہ محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں دیکھو اتنی بھدی بھینس ہے اور میں اتنا نفع والی چیزیں تمہیں اسے پہنچا رہا ہوں. یہ ہے غور طلب بات. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تمہاری نظر میں یہ جانور کچھ حیثیت نہیں رکھتے ہیں, بیکار ہیں یہ سارے, لیکن ان سے میں دنیا کو فائدہ دے رہا ہوں نا. تو تم نے کیسے سوچ لیا کہ تمہاری ذات کو جو میں نے بیکار پیدا کیا ہے؟ انسان صرف اپنے آپ کو کھپانا نہیں چاہتا اللہ کے راستے میں, اور سوچتا ہے کہ بس یوں ہی موج مستی کے لیے اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے, ایک ہی تو زندگی ہے, دوبارہ نہیں ملے گی زندگی.
मौज मस्ती कर लो, ऐशो आराम कर लो, और फिर एक दिन तो निकल जाना है। अच्छा, अपनी प्लानिंग में मौत की भी कोई प्लानिंग नहीं करता है। तो दुआ करिए, ये आयतें हमें ये गौर करवा रहे ना, मतलब इबरत है, इबरत है, ये इबरत है मेरे और आपके लिए, कि दुनिया में अल्लाह ताला अपने इतने छोटे छोटे हकीर जानवरों से भी जब इंसानियत को इतना फायदा पहुंचा रहे, तो बोलिए अल्लाह तो मेरी जात को जाय नहीं करना, कि अल्लाह मैं तो इंसान हूँ, तो जानवरों से फायदा ले रहा है, मैं इंसान क्या इंसान को फायदा नहीं दे सकती? अल्लाह तूने मुझे इस काबिल नहीं समझा, मैं इतनी हकीर हूँ तेरी नजर में कि तूने मुझे इस काबिल नहीं समझा कि मैं तेरी एक आयतें किसी तक पहुंचा सकूं। फिक्र करिए, अपनी फिक्र करिए। अल्लाह अकबर। मस्जिद अल्लाह ताला बता रहे हैं, और बेशक आयत नंबर 23, और बेशक भेजा हमने। अब आगे जो है, आगे अब बात आएगी कुछ अंबियाओं के, उनके जो है वो कौमों का जिक्र है। अब आप देखिए कि क्यों बार बार अल्लाह ताला अंबियाओं का जिक्र करते हैं। इट्स नॉट ए ओनली स्टोरी फॉर टाइम पास। मुझे और आपको इससे बहुत बड़े बड़े लेसन लेने हैं। किस तरीके का लेसन? कि जब आपकी जिम्मेदारी आपको समझ आ जाएगी कि आपको अल्लाह ने दुनिया में यूं ही मौज मस्ती करने के लिए नहीं भेजे, बल्कि अल्लाह ने अपने दीन को आगे पहुंचाने के लिए भेजा है। ये जिंदगी आपको क्यों दी अल्लाह ने? तो आपके साथ कुछ मामला पेश आएंगे, आपको उस पर जम कर रहना है, जैसे अंबिया के साथ हुए हैं, मे भी आपके साथ हो सकता है, मेरे साथ हो सकता है। तो इतना सब पढ़ने के बाद कौन बेवकूफ होगा जो अपने आप को तैयार करके नहीं रखेगा? बोलेगा नहीं मुझे तो पता ही नहीं था बाबा, मुझे तो नहीं चलना अल्लाह के रास्ते, मुझे क्या पता इतनी सख्तियां आएंगी। तो आधी अधूरी तालीम लेके, आधी अधूरी इल्म लेके निकलोगे, अल्लाह के रास्ते हो रहा है इंशाल्लाह। देखते हैं, सबसे पहले अल्लाह ताला ने जिस इंसान को जो नबी बनाकर भेजे थे वो नूह अलैहिस्सलाम थे। इंशाल्लाह उनके बारे में पढ़ते हैं। वलक़द अर्सलना नूहन इला क़ौमिही फ़क़ाल या क़ौमी इब्दुल्लाह व लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु अफ़ला अफ़ला तत्तक़ून। ओके, और तरह की रिसालत देकर हमने भेजा नूह अलैहिस्सलाम को उनके कौम की तरफ। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, इबादत करो, तुम गुलाम बन जाओ अल्लाह के, नहीं है तुम्हारे सिवा उसका कोई माबूद। फिर क्या तुम अकल से काम नहीं लेते हो? तुम जो है वो अल्लाह के अजाब से बचने की तुमको कोई फिक्र नहीं है? ये है, देखो ये है। आज मुझे और आपको भी ऐसे ही लोग कहेंगे। आप जब किसी को आप जो अल्लाह के कलाम किसी को पहुंचाओगे, तो पहले इसका उल्टा लोग आपको कहेंगे, क्या है जब देखो जब दीन 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 करते, तुझे अक्ल नहीं है क्या? दुनिया में रह के दीन 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 करते रहती है। तो इस तरीके से लोग आपको टोन कर सकते हैं। और उनके सरदारों ने कहा जिन्होंने इनकार किया था, ओके, नूह की कौम में से, नहीं है मगर इंसान है तुम्हारी तरह, ये चाहता है कि बड़ा बन जाए तुम पर जो है ये बड़ा बन जाए, और अगर अल्लाह चाहता तो जरूर नाजिल करता फरिश्तों को, लेकिन हमने सुना है इसके बारे में अपने पहले बाप दादाओं से, और नहीं हमने सुना है अपने बाप दादाओं से इसके बारे में पहले कोई नहीं है मगर एक आदमी है जिसको जुनून हो गया है। फिर तुम भी इंतजार करो, ओके, तुम इंतजार करो इसके ताल्लुक से कुछ वक्त इंतजार करो, भी पता चल जाएगा। देखिए जरा कौम के लोगों का जवाब। हो सकता है कि आप कहीं दावत देने जाएं और ये बातें आपको सुनने मिल जाएं, और यकीन करिए कि देखिए वक्त के जो बड़े लोग होते हैं ना, असल में दीन पर चलने पर जो है ना चोट उन्हीं पर पड़ती है। गरीब गुरबा तो सोचते हैं कि पहले ही हमारे पास कुछ नहीं, चलो जाने तो दीन पर चढ़ के कम से कम अपनी आखिरत तो हम जो वो संवार ले। लेकिन चोट जो पड़ती है ना अमीरों पर पड़ती है। आप उनको बोलो कि देखो नमाज पढ़ लो पढ़ लेंगे, रोजा रख लो रख लेंगे, जाओ हज करके आ जाओ कर लेंगे, ज़कात दे दो कर लेंगे, लेकिन चोट जो पड़ती है ना, तो उनका जो लाइफ स्टाइल होता है ना उसको चेंज नहीं करना चाहते। हर दौर का यही मसला रहा है, नहीं हम अपने लाइफ स्टाइल नहीं चेंज कर सकते। देखो हर नमाज रोजा ज़कात तो सब छुपी हुई चीज है ना, छुपी चीज है ये, अल्लाह का इसका ताल्लुक जो अल्लाह से है। लेकिन बंदे को आप बोलो एक चीज ये मत करो, वो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। करने के 100 काम आप बोल दीजिए, एक चीज अपनी जिंदगी में आप सारे बदलाव लेके आ जाओ, वही चोट पड़ जाएगी उसको, और वही आपको सुनने को मिलेगा। फिर कहने लगे कौम के लोगों में डाउट किस तरीके से पैदा कर रहे हैं। अरे कौम के लोगों, देखो ये तो तुम्हारे जैसा इंसान है, अरे ये तो चाहता है कि तुम में बड़ा बन जाए। देखिए जरा कैसे शक पैदा किया जा रहा है। ठीक है, अरे इंसान हो, जब भी तो इंसान को अल्लाह ताला ने तुम्हारे बीच भेजा ना दावत देने के लिए। और क्या कहा उन्होंने, काश अगर अल्लाह ताला चाहता ना कि किसी को रसूल बनाना, तुमको सुधारना, तो फरिश्तों को भेजता। अकल को बात लगती है ये। और जब फरिश्ते आते तो क्या बोलते हैं, देखो इंसान को भेजे तो ये बोले तुम भी तो हमारे जैसा है, क्या फर्क है तुम में हम में।
आज के दौर में क्या हर दौर में दीनदारों के ताल्लुक से लोगों का एक जो रवैया रह गया, वो क्या सोचते हैं, दीनदार बोले तो जाओ अपने घर का कोपचा पकड़ो, कोने में जाओ, जाए नमाज बिछाओ, तस्बीह लो, अल्लाह अल्लाह करते रहो, बाहर आने की तुमको जरूरत नहीं है और किसी के मामले में बोलने की जरूरत नहीं। जरा दीनदार, एक किसी दीनदार को किसी होटल में बैठ के खाना खाते हुए देखो, ओहो ये कैसा दीनदार है, फैमिली को लेके घूमता है, अरे ये तो घूमने इधर भी जाता है, अरे ये तो मेले में भी जाता है, इधर भी जाता है, गार्डन भी घुमाता है। तो एक बात बताइए, दीनदार की क्या कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती है? दीनदार अपनी जिंदगी को बिल्कुल भी अल्लाह के रास्ते में, हाँ ये इतना होता है कि वो अल्लाह की मर्जी पे जिंदगी गुजारता है। अल्लाह ने कुरान में कहीं मना नहीं करे कि फैमिली के साथ घूमो फिरो मत, बल्कि अल्लाह ताला तो और बोल रहे कि घूमो फिरो, लेकिन नॉट फॉर इंजॉयमेंट, नॉट फॉर टाइम पास, नॉट फॉर फन, बल्कि इबरत हासिल करने के लिए बाहर घूमो। दीनदार ले जाते हैं ना अपने बच्चों को बाहर, गरीब गुरबा को दिखा के कहता है कि देखो तुम कितनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं और इनकी जिंदगी देखो कैसी है। वो बच्चों के, बीवी के हुकूक, और अपने एक औरत है तो अपने शौहर के बच्चों के सारे हुकूक पूरे करते हुए वो अल्लाह को राजी करती है, ना कि जिंदगी को ऐशो आराम में गुजार कर अल्लाह की नाफरमानी करके उसको नाराज करते। हर दौर का ही फितना है, हर दौर का। जरा किसी दीनदार को अगर उसने कहीं मैकडोनल्ड्स में देख लिया इधर, तो ओहो लो लो ये कैसे दीनदार है, मैकडोनल्ड्स में भी खाते पीते हैं। तो अल्लाह ताला तो मना नहीं कर रहे कि खाओ पियो, ये कि अल्लाह के हुक्म पर जिंदगी पूरी तरीके से वो गुजारते हैं। और अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि ये कहते हैं कि फरिश्ते, तो फरिश्ते आते तो क्या बोलते हैं, नहीं नहीं बाबा, बोले कि फरिश्ते है ना, हम कैसे अमल कर सकते हैं, वो तो फरिश्ते हैं ना। जैसे कुछ लोग आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में होते हैं, नहीं नहीं हम सुन्नत पे कैसे अमल कर सकते हैं, अरे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो जो अमल करते थे हम कैसे कर सकते हैं। तो इन मुसलमानों को अक्ल नहीं है क्या जो ऐसी बातें करते हैं? भेजा ही इसलिए गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि उनकी इत्तिबा की जाए, और आज इतना बड़ा बना दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि उनके अमल को भी, अमल पर अमल करने को इनको जो है शर्म आती है। कैसा मुसलमान है, कैसा मुसलमान है जो गैरों के मजहब को अपनाने को, गैरों के तरीके को अपनाने को अपने आप में बड़ा बड़ा बड़प्पन जानता है। ओहो देखो हम न्यू ईयर मनाते हैं, देखो वैलेंटाइन मनाते हैं, देखो बर्थडे मनाते हैं, हम बहुत अच्छे हैं। और जरा दीन का कोई काम करने को बोले तो बोले नहीं नहीं बाबा ये हमारे लायक नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे तो हम कैसे कर सकते हैं। ये है कुछ मुसलमानों की आज के दौर का फितना बहुत बड़ा। मस्जिद अल्लाह ताला बता रहे हैं कि देखो, और ये कहते थे हमने तो हमारे बाप दादा से कभी सुना भी नहीं कि ऐसा भी कुछ होता है। आपको भी शायद ये जुमला कभी सुनने को मिला होगा। सही दीन जब आपके अंदर आएगा ना, आपके घर में ये चिम्मा गोइयां होंगी, आपके घर में ये बहसें छिड़ेंगी। अच्छा, अब जो हमारे बाप दादा नहीं करे तुम हमसे वो करवाओगी? हमारे बाप दादा ने तो कभी ये करे ही नहीं, हमने तो कभी देखा ही नहीं इनको। और यकीन करिए इतना घिसा पिटा जुमला, ये इतना घिसा पिटा कि सर में दर्द उठ जाता है ऐसी बातें सुन के। कौन समझाए इन लोगों को? अरे तुम्हारे बाप दादा ने कौन सा कुरान का तर्जुमा पढ़ लिया था, बाप दादा ने तुम्हारे कौन सा कुरान को समझ लिया था, कौन सी पूरी हदीसें याद कर ली थी, कौन सा पूरा सुन्नत का नॉलेज उनको हो गया था, जो तुम अपने इतने बाप दादा की बड़ाइयां मारते हो, बातें करते हो। और शक कैसा पैदा करे, देखो आपको भी ऐसे कर सकते। अरे नहीं ये मगर ये एक आदमी है जिसको ना जुनून हो गया, अरे ये तो पागल हो गया। आप भी सही दिन की बात करेंगे, बोलेंगे ये लो ये तो दीवानी हो गई, क्या रे कुछ भी बोलते रहती तू तो पागल हो गई है। तो देखिए किसको सब्र आएगा इन बातों पर, जिसको वाकई ये पता होगा कि ये पहले के अंबियाओं की सुन्नतें हैं, जो उनके साथ हो चुका है ये तरीका। तो आज दाई दीन के अंदर सब्र इसी तरीके से आता है। अल्लाह ताला क्यों पास्ट के अंबियाओं की जो है स्टोरी सुना रहे, ताकि तुम्हारे अंदर हिम्मत आए आगे दीन का काम करने की, कि ये कोई नई चीज तुम्हारे साथ नहीं हो रही और तुम इसको रोते धोते जो है दीन का काम करो, नहीं, हिम्मत लाओ अपने अंदर। पहले के लोगों के साथ भी ऐसा हो चुका है। अल्लाह अकबर। और कहते थे कि रुको रुको कुछ वक्त तक इंतजार करो, इसका पागलपन है ना सब दूर हो जाएगा, अभी लग पता जाएगा इसको, बड़ा दीन दीन करता है ना, अभी जरा सा झटका लगेगा ना दुनिया का तो सारे दीनदारी इसकी निकल जाएगी। सुना है आपने लोगों को ऐसी बात करते हुए? अल्लाह ताला तो कुरान में सारी बातों का खुलासा कर रहे हैं। हम तो लोगों की जुबान से सुनते ही बातें, क्योंकि इससे साइको है इंसान की, जो अल्लाह ताला खोल खोल कर बयान कर रहे हैं। अब क्या करे एक दीनदार, चोट पड़ी ना आपके मेरे दिल पर कि हाय मुझे इतनी बातें सुननी पड़ेंगी। अभी से अल्लाह ताला बोल रहे हैं हिम्मत है तो आगे बढ़ो, नहीं आगे बढ़ के अगर पीछे हटे ना तो मुंह की खानी पड़ेगी तुम्हें बहुत।
एक दफा ठान लिया ना जाना है, निकलना है कि अल्लाह के रास्ते में, तो निकल लिए। फिर क्या करे, क्या करे, बोलेंगे बाजी कुछ भी बोलते रहते, कभी हमें किसी ने बोल दिया तो मैं क्या पागल हूँ, मुझे लोग पागल बोलेंगे। तो क्या है, देखिए देखिए आज के टाइम पे दीन पर चलना और उस पर अमल करना, दूसरों तक पहुंचाना बहुत दिल जिगर का काम है। बहुत ज़्यादा लोगों की बातें सुननी पड़ती है, दिल को मजबूत करना पड़ता है। और सबसे बड़ा हथियार जो आपके पास होगा ना, वो है दुआ, अल्लाह से दुआ, जो कि नूह अलैहिस्सलाम ने कौम की इतनी बड़ी बड़ी बातों पे की। क़ाल रब्बि अंसुरनी बिमा कज़्ज़बून। नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ किया है, मेरे रब मेरी मदद फरमा, अरे ये लोग तो मुझे झुठला रहे हैं। तो आपको कोई झुठला दे तो क्या बड़ी बात है, दुनिया के सबसे पहले नबी को झुठलाया गया, सोचिए जरा। तो और ये सोचिए 950 साल इन्होंने तबलीग की थी, 950 साल। हम तो 9.5 घंटा भी काम नहीं करते अल्लाह के रास्ते में, और उसमें भी वावेला मचाते रहते इतना। 950 साल रेशो निकाला गया, तो 12 साल में, 12 साल की कोशिश में एक बंदा आता था इनकी, मतलब ईमान लाता था और दीन पर आता था। तो देखिए हमारे पास इतना वक्त तो नहीं है कि 950 साल, हमें तो ये भी नहीं पता कि अगला 9.5 घंटा भी मेरी जिंदगी का है या नहीं है, लेकिन जो भी मिले उसको दे दो अल्लाह के रास्ते में। अब जब अल्लाह ने पुकार कर कहा, तो देखिए वाकई अल्लाह मदद करते हैं, आप सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारिए। अल्लाह ने जिस तरीके से नूह अलैहिस्सलाम की मदद की, तो हमने वही की, नूह की तरफ के बना कश्ती हमारी निगरानी में, हमारे वही के मुताबिक फिर आए। फिर जब आ जाएगा हमारा हुक्म और जोश मारने लगेगा तनूर, तो सवार कर लेना उस कश्ती पर हर एक को दो दो जोड़े, और अपने अहल को, मगर जिस पर जारी हो चुका है अजाब का फरमान उसमें से, और न बात करना मुझसे उन लोगों के बारे में जो गुनहगार है, बेशक वो डूबने वाले हैं। फिर जब सवार हो जा तू और तेरे साथी कश्ती पर, तो दुआ कर, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज्जाना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। सारी तारीफें अल्लाह के लिए जिसने निजात दी हमें गुनहगार लोगों से। दुआ 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 एक तरफ कर लीजिए, अल्लाह ताला चुने आपको और मुझसे मजीद अल्लाह ताला काम ले, तो मैं तो दुआओं का ही सहारा लूंगी। मैं जाके किसी के कंधे पे नहीं रहूंगी कि हाय क्या तुमने कह दिया दीन का काम करने को, हाय ये लोग तो मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रहे, नहीं, दुआओं का सहारा लीजिए। और दुआ करो कि रब्बि अंजिलनी मुनज़लन मुबारकन व अंत खैरुल मुनज़लीन। और ये भी दुआ करो कि ए मेरे रब उतार दे मुझे कश्ती से, तू बाबर। ओके, तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं बरकतों के साथ उतारें, यकीनन हमने बेहतरीन उतार, और यकीनन आप ही जो है वो बेहतरीन उतारने वाले हैं। बेशक इसमें यकीनन निशानी है हर उस शख्स के लिए, ओके, हर उस शख्स के लिए कि जो आजमाइश में हो। अल्लाह ताला बोल रहे हैं जिसको हम आजमाएंगे ना, उसके लिए डेफिनेटली इसके अंदर बहुत बड़ी निशानी है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया सुम्मा अंशअना मिन बादिहिम क़रनन आखरीन। फिर हमने उठा खड़ा किया उनके बाद दूसरी आबादियों को, यानी उनको सबको गर्क किया जो जो अल्लाह की इबादत नहीं करते थे, किसी और की करते थे, अल्लाह ताला ने नस्त नाबूद कर दिया और दूसरे लोगों को पैदा कर दिया। और नूह अलैहिस्सलाम की ये जो कौम पर जो ये सैलाब आया था, इसके बाद जो कहा जाता है कि दुनिया सानी, यानी दूसरी दुनिया आबाद हुई, क्योंकि पूरी दुनिया खत्म हो गई थी, अल्लाह ताला ने सब सारा शिर्क खत्म कर दिया था। उसके बाद अल्लाह ताला मजीद फरमा रहे हैं फिर भेजा हमने उनकी तरफ उन्हीं में से रसूलों को, ये पैगाम देकर कि इबादत करो अल्लाह की, तुम्हारे लिए उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, क्या फिर तुम डरते नहीं हो? यानी तुम अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत करने से, उसके अंजाम से डरते नहीं हो? तो कहा सरदारों ने इनकी कौम में से जिन्होंने इनकार किया था और झुटला दिया था आखिरत की मुलाकात को। देखिए सुनिए ध्यान से, हाँ, सारे मालदार ऐसे नहीं होते कि झुटलाते। माल अपनी जगह बहुत अच्छी चीज है। माल अगर हिदायत के साथ, दौलत अगर हिदायत के साथ कोई इंसान, कोई मुसलमान इस्तेमाल करता है, तो अपने आप में बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अल्लाह ताला बोल रहे हैं झुटलाता कौन है, मानता कौन है? वो लोग जो ऐशो आराम का सामान रखा करते थे। अल्लाह ने उन्हें ऐशो आराम का सामान दिया था। ये है बात, जो इंसान माल को, अपनी दौलत को ऐशो आराम, दुनिया में ऐशो आराम का सबब बनाएगा, उसको अल्लाह ने अता किया और गलत इस्तेमाल कर रहा है। पहली बात तो ये, उनके उनके दिल पर बड़ी चोट पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनको अपना लाइफ स्टाइल छोड़ना पड़ता है। ये बहुत बड़ा जो है उनके लिए जो है बहुत दुख की बात होती है। मजीद अल्लाह ताला बता रहे हैं, और अगर तुमने कहा माना, अब देखिए, नहीं सॉरी, ऊपर एक आयत रहेगी, क्या कहते थे उनके कौम के जो उनके ओके उनके कौम के जो मालदार लोग होते थे, जो ऐशो आराम में अपने माल को इस्तेमाल करते थे दुनिया की जिंदगी में, कहते क्या थे? मा हाजा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम,
अरे ये तो नहीं है मगर तुम्हारी तरह इंसान है, क्या बात है, अरे ये तो खाता भी है खाना और वो पीता भी है पीने की चीजें। ये देखा पीछे जो मैंने बताया, दीनदार बोले तो अच्छा खाना नहीं खा सकते हैं। आप जब कभी मौलाना साहब को अच्छा खाना खाते देखो, ये कैसे मौलाना साहब है, मौलवी साहब इतना अच्छा खाना खा रहे हैं, क्यों क्यों नहीं खा सकते? अरे तुम तो मजे लेने के लिए खाना खाते हो, मौलवी साहब तो अल्लाह को रजा राजी करने के लिए खाना खा रहे हैं। मौलवी साहब तो इसलिए खा रहे हैं, एक दीनदार तो इसलिए खाता है कि वो अपने जिस्म में एनर्जी पैदा हो उस खाने से उसको, और वो एनर्जी अल्लाह के रास्ते में लगाए। और तुम जो खाते हो खाना किस लिए खाते हो? मजे लेने के लिए, जबान का चस्का, जबान का टेस्ट, पेट को अच्छा लगेगा। और उसके बाद में देखो कितनी सरकशी के काम करते हो, और उसी खाने को हजम करने के लिए, उस मोटापे को कम करने के लिए तुम्हें जिम, रनिंग और फिर जॉगिंग इस तरीके की तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है। और मौलवी साहब तो खा के ना उनको कोई जॉगिंग करने की जरूरत है, ना रनिंग करते हैं, और ना ही वो किसी मतलब जिम में जा रहे हैं अपनी हेल्थ को ऐसे करने के लिए। वो तो सारा अपना जो खाया पिया अल्लाह के रास्ते में लगा देते हैं। तो कहते थे कैसा ये है बशर, ये कैसा दीनदार है कि जो खाना भी खाता है और पानी भी पीता है, सब पीता खाता है। देखो जरा। और यकीनन अगर तुमने कहा माना, ऐसे यानी कौम के जो सरदार होते हैं ना, जिनकी दीन की वजह से जिनकी लाइफ स्टाइल पर जो जोर पर ये जर पड़ती है, मार पड़ती है ना, ऐसे लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं, फिर कौम के लोगों को भटकाते हैं। ओहो देखो देखो, अगर मैं अपनी एग्जाम्पल आपको दूं, ठीक है, कि किसी को अगर ये पसंद ना आए कि मैं दीन का काम करूं, बोलेंगे ओहो देखो देखो ये कितने अच्छे थे, क्या है ये, पढ़ाने जाती है, इतना बड़ा बड़ा पर्स टांग के जाती है, ये ऐसे ऐसे बुरके पहन के जाती है, तो मैं क्या फटे पुराने बुरके पहन के जाऊं? दीनदार हूं तो मतलब मैं फटे पुराने और हाथ में बस्ता टांग के, हाथ में थैली लेके फिर ऐसे पढ़ाने जाऊं, तो तुम समझोगे मैं दीनदार हूं? देखिए कि इंसान कभी कभी आपकी पर्सनालिटी से जो है वो मतलब अट्रैक्ट होके अल्लाह की तरफ आ जाता है। कभी कभी आपके बात से अट्रैक्ट अल्लाह ताला कर देते हैं, उसको अपनी तरफ दीन की तरफ ले आते हैं। तो जो टैलेंट, मैं तो अपने स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ, अगर आपके अंदर पकाने का टैलेंट है तो उसको आप दीन का हथियार बनाइए, लोगों को अच्छे अच्छे खाने पका कर दीन की तालीम दीजिए। अगर आपको पहनावे का टैलेंट है, आपको सेंस है वेल ड्रेसअप का, आप उसके जरिए दीन फैला सकती हैं। ये बोलेंगे ये कि नए नए तरीका बाजी बता रहे है, ये तरीका। आप जब दीन की बातें करने जाए, अपने आप को वेल एकदम अच्छा ड्रेसअप करके जाइए। कुछ लोगों के जहन में ये आएगा, वाह दीनदार इतने अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनते हैं, मतलब दीन ऐसा, कुछ लोगों की सोच है ना ऐसी, बाबा नहीं दीन में है तो अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, अच्छा खाना नहीं खा सकते। ये बहुत बड़ा मर्ज है आज के मुसलमानों के, फितना उनके दिमाग में जो भरा हुआ है ना, दीन पे आए तो बोले बोरिंग लाइफ, फिर अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, अच्छा लुक आउट करके हम बाहर नहीं जा सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक दफा एक बच्ची मुझे रास्ते में मिल गई, आते जाते मैं उस बच्ची को देखा करती थी, और मैं ऐसे देखती थी, उसको बड़ी प्यारी लगती थी मुझे। एक दफा मुझे कहीं पर मिली वो, मैंने कहा कि आपका नाम क्या है? तो नाम बताया उसने, तो बोलती तुम क्या करती हो? मैंने कहा मैं कुरान की तालीम देती हूँ। यकीन करिए जो उसने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा ना ऐसा, पर्स टांग के जाती हो, कुरान पढ़ाने जाती हो, पर्स टांग के जाती हो, इस ये लहजा था उस बच्ची का बात करने का, यकीन करिए। तो देखिए क्या हुआ, उसके घर का माहौल ऐसा होगा, उसके माँ बाप की थॉट ऐसी होगी, जिस माहौल में वो रहती होगी, आपा बाजी बोले तो वो बिल्कुल फटा पुराना सा गंदा सा बुरका पहन के आए, और वही आपा बाजी है जो दीन की तालीम दे। बच्चों की जहन, वो कितनी छोटी, हार्डली वो 4-5 साल की बच्ची रहेगी, उसका जहन देखिए किस तरीके का। वो जो उसका जुमला मुझे भूला नहीं जाता, हालांकि इस बात को 7-8 साल हो गए, लेकिन मैं नहीं भूलती आज तक उस बच्ची का जुमला। पर्स टांग के पढ़ाने जाती हो कुरान तुम, इस तरीके से उसने जो कमर पे हाथ रख के मटक कर मुझे जवाब दिया था, तो मैंने वही सोचा कि क्या लोगों का जहन है। तो देखिए, आप कोई भी लाइफ स्टाइल ले लीजिए, लेकिन उसमें अल्लाह की नाफरमानी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी। यानी कि आप जो है वो अल्लाह की रजा के साथ दीन पर चलिए, फिर देखिए। और अल्लाह का शुक्र है कि लोग खुश होते हैं कि मतलब दीन का काम करने वाली का आउटलुक भी इस तरीके से। और मैं इस चीज़ की बहुत एहतियात करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। और कोई ये मुझे बोले कि हाँ ये क्या है, पर्स टांग के ऐसे ऐसे बुर्का पहन के तुम दीन की तालीम देने जाती, तो मुझे तो ये बहुत बेवकूफ़ाना जुमला लगता है लोगों का। है खैर, लोगों की ये सोच है। आपको कहीं किसी प्रोग्राम में देख लेंगे तो ओहो ये दीन की तालीम देती है, देखो तो ऐसे प्रोग्राम में भी आइए।
ہم آئے ہیں تو ہم کون سا وہاں پہ اللہ کی نافرمانی کا کام کر رہے ہیں؟ ہمیں بلایا گیا تو ہم آئے ہیں. دعوت تو ویسے بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر قبول کرنا جو حق ہے اس کا. ہم جا رہے ٹھیک ہے، جو وہ کر رہے تھوڑی ہم وہ کر رہے ہیں. اگر وہ ناچ رہے، گا رہے، ٹھمکا رہے کمر کو، تو ہم تھوڑی ان کے ساتھ ناچ گانا بجانا کر رہے ہیں کچھ. ہم اپنی جگہ پر ہیں. ہم نے ایک رشتے داری کے ناطے پر جو ہے ان کے حقوق کو ادا کرنے گئے، دیٹس اٹ. پھر یہ کوئی مجھ پر انگلی اٹھائے کہ نو نو نو، یہ ایسی محفل میں بھی جاتی ہے. ہاں جاتی ہوں میں، لیکن اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام نہیں کرتی. اللہ کا شکر ہے، میں تو ساری محفلیں اٹینڈ کرتی ہوں. ہر وہ محفل جہاں مجھے پہلے سے اگر خبر ہو جائے کہ اللہ کے نافرمانی کے کچھ کام ہونے والے ہیں، تو یقین کریے ہر درجہ میں وہاں پہ اوائڈ کرتی ہوں جانا. لیکن یہ بات الگ ہے کہ سرپرائزنگ ہو جائے، مجھے نہ پتہ چلے کہ وہاں اللہ کی نافرمانی کا کچھ کام ہونے والا ہے اور میں چلی گئی، تو یقین کریے سر میں درد شروع ہو جاتے ہیں. گھبراہٹ سی ایک دم محسوس ہونے لگتی ہے ایسی محفلوں میں جا کر. جی کرتا ہے کب یہاں سے بھاگے ہم. یہ ہونا چاہیے آپ کے اندر. جب اللہ کا کلام اترے گا نا، تو یقین کریے ایسی محفلوں میں جان بوجھ کر تو خیر کوئی نہیں جائے گا. تو یہ دیندار کو ایک لوگوں نے جو اپنے اندر تصویر بنا کر رکھی ہے، کتنا فیکٹ ہے. دیکھیے آیتوں کے ذریعے کتنا خلاصہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. دیکھیے ذرا، آج اگر ہم اللہ کے کلام میں یہ چیزیں نہیں پڑھتے تو بتائیے ذرا انسانوں کی سائیکو ہمیں سمجھ میں آتی کبھی؟ اب ایسے بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں ایسے ڈاؤٹ جو دماغ میں پیدا کرتے ہیں، اچھا ایسا ایسا ایسا، اور دیکھو تم، اور آگے کیا جو ہے وہ ڈاؤٹ ایک اور اوکے لوگوں کے دماغ میں ڈالتے ہیں. دیکھو ہاں، اور اگر تم نے کہا مانا ایسے ہی جیسے تم اپنے جیسے کسی انسان کا اگر کہا مانو گے نا، تو بے شک دیکھو ضرور اس صورت میں نقصان اٹھاؤ گے. کہتے ہیں نا دیندار کے بارے میں، کیا فرق ہے اس میں تجھ میں؟ کیا ہے؟ جیسے تو گھوم پھر رہی ہے ویسے وہ گھومتی پھرتی ہے، تو کھا رہی پی رہی ہے، وہ کھا رہی پی رہی ہے. اور اس طریقے سے دیکھ، اگر تو اس کا کہا مانے گی نا تو نقصان بہت اٹھائے گی. بتائیے ذرا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو کیا وہ ڈراتا ہے تمہیں اس بات سے کہ جب تم مر جاؤ گے اور تمہاری جو ہے باڈی، تمہاری ہڈیاں وغیرہ جو ہے وہ مٹی میں مل جائے گی. کیا بولتا ہے تم کو ڈراتا ہے اس بات سے کہ تم دوبارہ نکالے جاؤ گے؟ بات پہ غور کریے ذرا. یعنی کوئی دین کی دعوت دے بولے اور بولے نہیں نہیں دیکھو اپنی زندگی کو سنوار لو، سدھار لو، اور دوسرا آ کے بولے کیوں سنوار لو سدھار لو، ارے ایک ہی تو زندگی ملی ہے، دوبارہ کی زندگی ملنی ہے کہ موج مستی کر لو. ارے تمہیں کس چیز سے وہ ڈرا رہا ہے؟ ایسے کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، اچھا ایسا کرو گے تو دیکھو تمہارے ساتھ ہے. حالانکہ دیکھیے کہ ایمان والا جو داعی دین ہوتا ہے نا، وہ اگر دیکھو تم ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، وہ بددعا نہیں دیتا کسی کو، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو نارمل لوگوں سے کچھ سمجھ زیادہ دے دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کا کلام وہ سمجھ چکا ہوتا ہے. دور اندیش اللہ تعالیٰ اس کو بنا دیتے ہیں، کیونکہ وہ سب کچھ قرآن کے ذریعے سمجھ کر چکا ہوتا ہے کہ دیکھو اگر انسان نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ ایسا کریں گے. حالانکہ دیکھیے وہ کوئی غیب کی بات نہیں بتاتا ہے، وہ پریکٹیکلی بات کرتا ہے کہ دیکھو تم ایسا کرو گے نا تو ایسا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی اتنا سینس اس کے اندر اللہ تعالیٰ بھر دیتے ہیں. اور یہ لوگ بولتے ہیں اچھا تمہیں ڈراتا ہے کیا قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا؟ آپ کسی کو بولو کہ تمہیں قیامت کا خوف نہیں ہے، تمہیں حساب کتاب دینے کا خوف نہیں ہے اللہ کو، تو بتاؤ اس میں کون سی غیب کی بات ہو گئی؟ ایوری ون نو کہ قیامت آئے گی، حساب کتاب دینا ہے. تو یہ جو سردار ہوتے تھے وہ بولتے تھے ارے وہ تم کو ڈرا رہا ہے، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے، چھوڑو جانے تو. ہیہات لما توعدون، ناممکن بات ہے، یہ ناممکن بات ہے جس کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے. دیکھیے ذرا، اور پتہ یہ بات انہوں نے کیوں بولی؟ دیٹس اے ریزن کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. یہ انسان کی سوچ آخرت سے غافل کر دیتی ہے کہ نہیں ہے مگر یہ ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور یہ ہمیں مرنا اور جینا یہیں پر ہے اور ہمیں دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا. یہ عقیدہ جن لوگوں نے بنا لیا نا، یقین کریے انہوں نے آخرت کا انکار کر دیا ہے. نا کچھ لوگ ارے کچھ نہیں، ان کو اگر آپ کہو کہ دیکھو خوف نہیں تمہیں اللہ، ارے کچھ نہیں، کوئی قیامت نہیں آنے والی، ارے چھوڑ نہ چل، ارے ٹھیک ہے آپ بھی گئی نا دیکھ لیں گے. ارے جب آئے گی آپ کسی کو برا کام کرتے ہوئے روکو تو بولے ارے کیا ابھی آ رہی، کیا ابھی موج مستی کرنے تھے، کیا ڈر آتی رہتی جب دیکھو دیکھ قیامت قیامت قیامت. یہ بہت کامن جملہ ہے لوگوں کا، جو ہم کو بھی سننے ملتا ہے، میں بھی آپ کو بھی سننے مل سکتا ہے. مزید اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں دیکھو اور کیا کیا بولتے تھے، آئے تھے سب کنٹینیو ہے. یہ اس قوم کے بڑے لوگ بول رہے ہیں، مالدار لوگ، وہ مالدار، سارے مالدار برے نہیں ہوتے. دیکھو میں نے پہلے ہی خلاصہ کر دیا، وہ مالدار کہ دین کی وجہ سے جن کی لائف اسٹائل پر چوٹ پڑتی ہے. آپ ان کو بولو کہ نہیں یہ دیکھو ایسا ہے یہ مت کرو، تو ان کے لائف اسٹائل پر، جو ان کا سورس آف انکم ہے اس پر چوٹ پڑے گی. ہم یہ نہیں کریں گے تو کمائیں گے کہاں سے؟ مزید کیا کیا انہیں دیکھو.
इन हुआ इल्ला रजुल इफ्तरा वल्लाहि कज़िबा, अल्लाहु अकबर। नहीं है मगर ये आदमी ऐसा है जिसने बांध लिया अल्लाह पर झूठ, और नहीं है इसकी मानने वाले। बोलते हम तो यकीनन बिल्कुल इसकी कोई बात नहीं मानेंगे। नाउस बिल्ला, रसूलों को, अंबियाओं को ये कहते थे ये अल्लाह पर झूठ बात कर रहा है। क्या झूठ बात कर रहे हैं? कि कयामत आएगी, हिसाब किताब तुम्हारा होगा। इतनी बड़ी कन्वर्सेशन होने के बाद देखिए बीच में नबी ने कुछ नहीं कहा, सारी बातें उनकी हो गई, सुन लिए। दाई दीन को सिखाया जा रहा है, पहले अगले की सुन लो, बोलने तो जितना बोलता है उसके मुंह से भड़ास उसके दिल के सारे निकलने दो, उसके बाद तुम बोलना। फिर उन्होंने कहा क़ाल रब्बि सुन्नी बिमा कज़्ज़बून, ए अल्लाह अल्लाह ताला से नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ किया है, मेरे रब मेरी मदद कीजिए ना इस पर जो ये झुटला रहे हैं। देखिए एक जुमला भी कहा, ए मुझे झुटलाने वालों सत्यानाश हो तुम्हारा, मुझे ऐसी ऐसी बातें बोल रहे तुम। नहीं, दाई दीन को गुस्सा नहीं आना चाहिए उसके झुटलाए जाने पर। ये सच्चे दाई दीन की निशानी है। लोग उसको झुटलाएंगे, बुरा भला कहेंगे, झूठा कहेंगे, दीवाना कहेंगे, मजनू कहेंगे, सरफिरा कहेंगे, ना जाने क्या क्या कहेंगे। सारे अल्फाज कुरान में आ चुके जो मैंने आपसे कहा। और ये देखिए कि उस पर सिर्फ एक जुमला कि अल्लाह तू मेरी मदद फरमा, बस एक ही हथियार है उसके पास, दुआ, उसमें भी अल्लाह की मदद। तो इस हथियार को अपने साथ लेकर जाइए जहां जाना है आपको दाई दीन का काम करने को। मजीद उन्होंने दुआ की, ओके नहीं, अल्लाह ने फरमाया ओके अम्मा कलील, कुछ ही देर रुक जा, जरूर ये सब होंगे अपने किए पर नादिम, तसल्ली दे रहे। और आपको पता है कि नूह अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की 40 साल के बाद उनकी दुआ कबूल की गई। सबसे पहले नबी दुनिया के आदम अलैहिस्सलाम के बाद उनकी दुआ 40 साल के बाद कबूल हो रही, जिन्होंने 9.5 साल तबलीग करे अल्लाह के रास्ते में। और आज का मुसलमान चाहता है ये मेरे मुंह से दुआ निकले और इधर फौरन मैं पलटू अपनी करवट लूँ तो इधर मेरी दुआ कबूल हो जानी चाहिए। इसलिए अल्लाह ताला बोल रहे इंसान बड़ा अजुला है। कैसा है? बहुत जल्दबाज है। वो सोचता है कि बिल्कुल उसकी दुआ कबूल हो जानी चाहिए। करने को कुछ मत बोलो अल्लाह के रास्ते में और दुआ फटाफट कबूल हो जानी चाहिए। ये सोच है आज के मुसलमानों की, कुछ लोगों की। अल्लाह ताला बोले अरे गम मत कर, कुछ देर रुक जा जरा, देख अपने किए पर बहुत पछताएंगे। फिर पकड़ लिया उनको एक धमाके ने, बहुत, और धमाका ऐसा था कि उनके सामने हुआ था हकीकी तौर से। फिर हमने बना दिया उनका चूरा चूरा। अल्लाह अकबर। सो अल्लाह की रहमत से दूरी हो गई गुनहगारों की। फिर हमने दूसरे लोगों को खड़ा कर दिया, उनके बाद दूसरी आबादियों को जो ला खड़ा कर दिया। अल्लाह अकबर। नहीं आगे बढ़ सकती थी कोई उम्मत अपने वक्त से, और ना ही वो देर कर सकती थी। कोई बोलता है ना ए चल चल बाबा तू डरा मत, ये होएगा वो होएगा वो होएगा, और कुछ टाइम तक अगर उसके साथ कुछ नहीं हुआ तो आपके मुंह पे आपकी बात को दे मारेगी, तू बड़ी बोलती थी ये होगा वो होगा, देख क्यों नहीं हुआ। तो अल्लाह ताला जवाब दे रहे हैं, इसलिए फौरन तुम्हारे साथ कुछ नहीं होता है, क्योंकि हर इंसान का, हर ग्रोह का, हर ग्रुप का एक वक्त मुकर्रर है। जब उसका वक्त आएगा तो सारी बातों का खुलासा हो जाएगा। इसकी आज का जो एक माहौल चल रहा है इस वबा का, ये बहुत बड़ी हकीकत है इस आयत को वाज़े करने के लिए कि जहाँ के जिन लोगों को हलाक करना है उस वबा से, और ग्रुपिंग में या इंडिविजुअली जैसा भी जिसका वक्त आ गया है वो सबको जाना ही है। अल्लाह अकबर। मजीद अल्लाह ताला बता रहे हैं सुम्मा अरसलना रुसूलना तत्रा, फिर रिसालत देकर भेजते रहे हम अपने रसूलों को लगातार, कंटिन्यूस। जब भी आया किसी उम्मत में, ओके, कोई भी रसूल जब उस उम्मत के पास आए तो क्या किया उन्होंने? झुटला दिया उसको, और पीछे लगा दिया हमने उन्हें एक दूसरे के, और बना कर रख दिया हमने उनका किस्से कहानियां, बस फसाना ही बना दिया अल्लाह ने। आज देखो कि जो कौम के वक्त के जो रसूल थे, अंबिया थे, उनके कौम के लोग जो हलाक हुए, क्या कि कोई अच्छे दिल से उनको याद करता है? कोई बोलता है क्या अरे मुसलमानों जरा सुनो, जो कौम हलाक हो गई है उसको फॉलो करो? कभी सुने आपने ये आयत जुमला? कभी भी नहीं सुने। इसलिए कि अल्लाह ताला बोल रहे इनका तो बस हमने किस्से कहानियां और बिल्कुल फसाना ही बना के छोड़ दिया। तो रहमत से दूरी है ऐसे लोगों की जो किताब और सुन्नत पर नहीं चलते हैं। देखिए जरा, बहुत बड़ी दलील है इस चीज की कि जो रसूल की सुन्नत को नहीं अपनाता है, अल्लाह की किताब को अपनी जिंदगी में नहीं लाता है, अल्लाह की रहमत से दूरी हो जाती है। अल्लाह ताला खुद बोल रहे हैं। फिर रिसालत के लिए हमने भेजा मूसा अलैहिस्सलाम को, और उनके भाई हारून को दिया हमने उनको दलील, एकदम बिल्कुल खुली खुली दलील।
کدھر بھیجا؟ فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، جو بہت تکبر کر رہے تھے اور وہ لوگ بہت اونچا سمجھ رہے تھے اپنے آپ کو. دیکھیے ذرا، اللہ نے ان کو اونچا نہیں بنایا تھا، وہ اپنے آپ میں ہی بڑے بن رہے تھے. سو کہنے لگے کیا ہم ایمان لائے؟ اچھا تم دونوں آدمیوں پر ہم ایمان لائے جو ہمارے جیسے تم انسان ہو، اور تم دونوں تو ایسے قوم کے لوگ ہو، ایسے قوم کے بندے ہو جو ہماری غلامی کرتے تھے. اس جملے کو بہت دھیان سے سنیے گا. کیا کہہ رہا ہے فرعون اور اس کے سردار؟ اچھا یعنی بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا تھا نا اس نے، تو بول رہا ہے کہ اچھا اب تم غلاموں کی بات ہم سنیں، تمہارے کہنے پر ہم چلیں. جیسے کہ فار ایگزامپل کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی بالکل نچلے طبقے کی بچی کو داعی دین کا ایک صرف حاصل کریں اللہ تعالیٰ، اور وہ کہیں جائے اور دین کی دعوت دینے اتفاق سے جہاں دعوت دینے جا رہی ان کی مالکن بھی وہاں آ جائیں. اچھا تو اب تیری بات ہم مانیں، جس کی ماں میرے گھر میں کام کر چکی ہے، جو میرے گھر میں بائی رہ چکی ہے، اس کی بات مانے ہم لوگ. یہ انداز تھا، نیچا دکھانے کا انداز تھا، بالکل بالکل نیچا دکھانے کا انداز. تو یہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تم ان کے پرسنالٹی کو کیا دیکھ رہے ہو، تم یہ دیکھو وہ پیغام کیا لے کر آئے. یہ وجہ تھی اپنے سے نیچا سمجھنے کی وجہ سے، فَكَذَّبُوهُمَا انہوں نے جھٹلا دیا ان دونوں کو، اور وہ ہو گئے ہلاک ہونے والے میں سے. بتائیے وہ ماسی کی بیٹی کا کیا بگڑا؟ وہ تو جس کو دعوت دینی تھی دے کے چلی گئی، اللہ نے تو اس کو یعنی کہ سب کچھ اچھا کر دیا. جس نے نہیں مانا اس کو ہلاک کر دیا، جس طریقے سے فرعون اور اس کے سرداروں کو اللہ نے ہلاک کر دیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے مزید آیت نمبر 49 میں کہ در حقیقت ہم نے دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. کیوں دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب جو ہے وہ فتوے دینے کے لیے نہیں دیے تھے، قسم کھانے کے لیے نہیں دیے تھے، اور نہ ہی اس کو مردے پہ پڑھنے کے لیے. لعلہم یہتدون، تاکہ انسان کو ہدایت ملے. اور وہی مقصد ہے یہی قرآن کو نازل کرنے کا، تاکہ انسان اس کو پڑھے اور اس میں سے ہدایت کا سبب لے، ہدایت کا ذریعہ بنائے اس کو. اور ہم نے بنایا تھا مریم کے بیٹے کو، اوکے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو نشانی، اور ٹھکانہ دیا تھا ہم نے ان دونوں کو اونچائی پر جو قرار والا تھا، اور اس کے نیچے چشمہ جو تھا، مقام، چشمہ کا مقام تھا. اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں اتنے لوگوں کی اسٹوریز بیان کرنے کے بعد، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعلموا صالحا انی بما تعملون علیم. بہت خوبصورت. اور یہاں پر دیکھیں کہ عمل کی بات بہت زیادہ نوٹ کرنے کی میرے لیے اور آپ کے لیے. اے رسولو، کھاؤ پیو پاک چیزوں سے، کھاؤ پاکیزہ چیزیں، اور کھا کے موج مستی مت کرو، بلکہ وَاعْلَمُوا الصَّالِحَ، نیک عمل کرو. دیکھیں ذرا کتنا بڑا فیکٹ ہے اس کے اندر. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں پاک چیزیں کھاؤ. اور پاک چیزیں کیا ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ دیکھیے حلال کا لفظ نہیں ہے، کیونکہ داعی دین جو ہوتا ہے نا، ایمان والا بندہ، حرام کمائی تو سوچ نہیں سکتا زندگی میں کمانے کی، بالکل نہیں. کیوں؟ کیونکہ جب باقی کام سارے اللہ کے خوف سے وہ زندگی گزار رہا ہے، اور حرام کمائی جو ہے وہ کھا لے گا وہ، نو. اس لیے یہاں پر صرف بات طیب کی آئی ہے. پاکیزہ چیز وہ ہوتی ہے جو، یا پھر میں الٹا کہوں آپ کو، پاکیزہ چیز وہ نہیں ہوتی ہے جو آپ کے جسم میں جا کر کچھ تکلیف دے آپ کو. اب آپ خود لسٹ بنا لیجئے کہ کون سی چیز پاکیزہ نہیں ہے. جو آپ کے جسم میں کوئی طاقت نہیں دے رہی ہے، الٹا آپ کو بیمار کر دے رہی ہے، اور آپ کے جسم میں جو جمس پیدا کر رہی ہے، وہ تمام چیزیں اس پاکیزہ طیب کی کیٹیگری میں نہیں آئے گی، پاکیزہ کے کیٹیگری میں نہیں آئے گی. چاہے آپ وہ پھر فاسٹ فوڈ لے لو، گرم کھانا لے لو، مرچے والا لے لو، نمک والا لے لو، کوئی بھی لے لو. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں یہاں پہ آپ آیت کی طرف غور کریے، کیونکہ کھانے کا تعلق عمل سے بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. اپنے اسٹوڈنٹس کو شروع میں ہی ہم بہت زیادہ یہ سمجھا دیتے ہیں، قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ نیک عمل کی توفیق چاہیے تو اپنے کھانے پینے پر بہت زیادہ دھیان دو، بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے انسان کو کہ وہ کیا کھا رہا ہے. اور کبھی کوئی چیز کھا کر جو ہے نا، یعنی کہ، اور دیکھو اللہ تعالیٰ خود کھانے پینے کو بول رہے ہیں. کس کو؟ داعی دین کو، دین والوں کو. کیوں؟ کیونکہ تم اچھا کھاؤ گے تو اچھا کام کرو گے. کبھی اگر تمہارا دل کرے نا ہائی جانے دو نا، آج کچھ پڑھاتی نہیں ہو، چھوڑو جانے دو، تو یقین کریے، یا پھر آپ کو ایسا دل کرے کہ کیا ضرورت ہے آن لائن سننے کی، جانے تو آف لائن سن لوں گی میں. کسی دن آپ کے دل میں یہ خیال آ گیا نا اگر، تو یہ سوچیے گا، غور کریے گا، کیا گیا میرے پیٹ میں آج جو آج مجھے کلاس اٹینڈ کرنے کا دل نہیں کر رہا ہے؟ کیا گیا میرے پیٹ میں کہ آج میرا دل نہیں کر رہا ہے کہ میں ڈائریکٹلی اللہ کا کلام سنوں؟
क्या है, क्या गया मेरे पेट में, कुछ तो ऐसी नापाक चीज मेरे पेट में गई है। और उसके साथ साथ देखिए कि पकाने का बहुत बड़ा ताल्लुक है इससे, कि आप जो चीज खा रही है ना, आपके जिस्म में जा रहा है, उसको पकाने वाला कौन था, उसने क्या सामान, इंग्रेडिएंट्स क्या उसने यूज किए थे उसमें, किस तरीके से उसने पकाया था। इसलिए देखिए मैं बाहर के खाने पीने बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ इसी वजह से। मेरे मुझे तो खौफ आ जाता है कि किसी दिन बाहर का कुछ खा के बैठ जाऊं और पता चला मेरी क्लास ही गायब हो गई। इतना हैवी खा लिया कि आंख लग गई, सो गई, क्लास का टाइम चला गया। मुझे तो अंदर से एकदम घबराहट, अभी टाइम हो गया। मैं सुबह से उठती हूँ तो मुझे सोने का दिल नहीं करता है कि कहीं मैं सोती पड़ी ना रह जाऊं, इतना खौफ आता है मुझे। नापाक चीज अंदर जाएगी ना, यकीन करिए खून में शामिल होके उसका दारोमदार आपके अमल पर बहुत ज्यादा है। कभी आप बच्चों को देखते हैं ना, छोटे बच्चे अगर आपके घर में बहुत शरारत करते हैं, कभी जिस दिन उन्होंने कुछ बाहर का खाया होगा ना, इवन चाहे वो चॉकलेट हो, कैडबरी हो और कोल्ड ड्रिंक पिए हो, उस दिन उनके खून में जाके वो शरारत जो दिखाते हैं ना, यकीन करिए अल्लाह की पनाह। आप चाहते हैं आपके बच्चे जो हैं ऐसी हरकतें ना करें जिससे आप परेशान हो जाएं, अवॉइड करिए, बाहर की चीजें सब अवॉइड करिए। क्योंकि वो, आपको क्या पता कि कैसे बनती है, वो कौन से लोग बनाते हैं, जो हाथ उसमें अमल कर रहा है क्या पता वो नमाजी है या नहीं, पाक है या नहीं है, कौन है क्या पता वो। इस वजह से बाहर की चीजों को अवॉइड करिए। वक्त जरूरत देखिए खा लीजिए, लेकिन उसको आदत मत बनाइए। और खा भी लिए कभी ना अगर, तो अल्लाह से बहुत ज्यादा मगफिरत मांगेगी, अल्लाह खा तो लिया मैंने, लेकिन बस तू ही बस अगर रहम कर दे तो हो जाए कि मेरे खून में ना इसको दूसरे रास्ते से ही निकाल दे, सारा मेरे खून में शामिल ही ना हो। क्योंकि अल्लाह ने क्या सिस्टम बनाया है ना, इफ्तारी में इतना चबर चबर कबर कबर सारी चीजें हम खा जाते हैं। पेट इतनी मजबूत चक्की है देखो, कि सब हजम कर जाती है। और अल्लाह को बेहतर पता है, ऐसा सिस्टम उसने रख दिया है, किसका खून बनना है, किसका टॉयलेट बन के निकलना है, किसका पेशाब बन के निकलना है। एवरीथिंग अल्लाह ने सिस्टम जो सेट कर दिया है। देखिए जो चीजें हमें बाहर नजर आ रही, मेरे हाथ को मैं देख सकती हूँ, मेरे पैर को मैं देख सकती हूँ, चलो आईने में मैंने देखा तो मेरे चेहरे को मैं देख सकती हूँ, लेकिन इंटरनली जो हमारे आर्गन्स हैं, यकीन करिए उसके लिए इंसान बहुत कम ही शुक्र अदा करता है। शुक्र बहुत ज़्यादा अदा किया करो। और खाने पीने पर आज के बाद से बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप चाहती हैं कि आपके घर में एक अच्छा माहौल बना रहे, आपके घर में तू मैं ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, चाहे वो किसी का किसी के भी बीच में हो, माँ बेटे के बीच में हो, भाई भाभी के बीच में हो, और बीवी के शौहर के बीच में हो, आपस में भाई बहनों के बीच में हो। आप चाहते हैं ना कि ये जहन्नमियों वाला मामला हमारे घर में ना हो, तो आप खाना पकाते वक्त अगर आपके इख्तियार में है, आपकी ड्यूटी है पकाना, आप अल्लाह का जिक्र करते करते पकाइए। वो खाना आपके घर वाले जो खाएंगे ना, वो देखिए फिर खून पर कितना बेहतरीन असर होगा। करके देख, आज करके देखिए। चलिए आप में से जिसको जो पकाना है, चुप करके एकदम मुंह बंद करके बैठिए, किसी से कोई फालतू बात नहीं करना है आपको। और जो एक काम करिए कि वो सिर्फ अल्लाह की जो है वो तस्बीहात करते करते पकाइए, और वो खाना आज अपने घर वालों को खिलाइए। देखिए फिर आपको कितना सुकून महसूस होगा, खुद को खाकर भी बहुत सुकून महसूस होगा। तो आप बोल रहे हैं कि देखो तुम जो कर रहे हो ना, मैं सब जानता हूँ, सब देख रहा हूँ, सिर्फ तुम अपने खाने पीने पर ध्यान रख लो। क्यों? खाने पीने पर ध्यान रखोगे तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि कोई बुरा काम नहीं करोगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, नाउ नेक्स्ट 52 में अल्लाह ताला बता रहे हैं, सुन लो, व इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा, बेशक ये तुम्हारी उम्मत थी और ये एक ही उम्मत थी। कैसे एक ही उम्मत थी? ये एक ही ग्रुप कैसा था? क्योंकि इनका एक ही मसलक था, एक ही तौहीद पर थे, ये एक ही अकीदा था इनका, तौहीद, दैट्स इट। आज अगर उम्मत मुस्लिमा भी सिर्फ तौहीद पर आ जाए ना, यकीन करिए किसी के बीच में कोई लफड़ा ही नहीं रहेगा। फिर अल्लाह ताला बोल रहे हैं, ये एक उम्मत थी, अना रब्बुकुम, मैं हूं तुम्हारा रब, फिर मुझसे डरो। और यकीन करिए जो इंसान आज कभी अपने आप को इस तौहीद के ग्रुप में इन्वॉल्व करता है ना, वो सिर्फ अल्लाह से डरता है, लोगों का डर तो उसके दिल में रहता भी नहीं, कभी नहीं डरता है लोगों से। वो बोलता मर के अल्लाह के पास जाना है, क्यों लोगों से डरे, कौन सा लोग मेरे साथ कब्र हशर में आके खड़े होंगे, कोई भी नहीं। मत डरिए लोगों से, लोग आपको दीन से दूर करने के लिए डराएंगे, लेकिन अपने अंदर इस्तिकामत पैदा करने की कोशिश करिए इंशाल्लाह। अच्छा हुआ क्या, अब उनके बाद के लोगों ने क्या बिगाड़ फितना पैदा किया वो देखते हैं इंशाल्लाह। लेंगे हुआ क्या फिर। अल्लाह ताला बोल रहे ये मेरी उम्मत थी, तौहीद परस्त थी,
बहुत कामयाब गुजरी है। हुआ क्या, बाद के लोगों ने किया क्या, तो उन्होंने काट दिए दिए गए हुक्म को और आपस में टुकड़े टुकड़े हो गए। कितनी सच्चाई है देखिए इस बात में। बाद के लोगों ने, आज जैसे मुसलमानों ने अपना फिरका, मेरा मसलक, मेरी जमात, मेरा फिरका बढ़ गए ना, तो अल्लाह ताला वही उनके साइको को यहाँ पे बयान कर रहे हैं। अल्लाह ताला बोल रहे हैं हर ग्रुप, हर मसलक, हर जो जमात है, जो उनके पास है ना उसी पर इतरा रहा है। अल्लाह अकबर, कितना फैक्ट है इस बात में देखिए। हर दीनदार जो अपना मसलक ग्रुप जो बना के रखा है, और देखिए तौहीद वाले का कोई ग्रुप कोई मसलक नहीं होता है। तौहीद परस्त इंसान जो होता है वो कहता है मैं मुसलमान हूँ। सूरह हज में इन डिटेल हमने उसके बारे में पढ़ लिए। अल्लाह ताला ने तुम्हें कहा है कि कहो कि मैं मुसलमान हूँ, ये नाम तुम्हें अल्लाह ने दिया है। इंसान इतना बदबख्त है कि जो नाम अल्लाह ने उसको दिया है उसको छोड़ के अपना मसलक, मेरी जमात, मेरा ग्रुप, अल्लाह ताला बोल रहे देखो जरा, जो उसके पास है ना उस पर ही इतराया जा रहा है। तो अब करे क्या, करे क्या, इनकी फिरका परस्ती जो जो लोग कर चुके हैं, जो दीनदार को टुकड़े टुकड़े, दीनदारों ने जो टुकड़े टुकड़े कर दिए दीन के, इनका क्या करें, इनका ये करो, छोड़ दो उनको। अल्लाह का हुक्म है आयत नंबर 53 54 में, अल्लाह ताला बोले छोड़ दो उनको, उनकी जहालत भरी सोच में छोड़ दो, और यहाँ तक के उनका वक्त आ जाए, मर जाए उसी के अंदर। अल्लाह ताला बोल रहे हैं इनका वक्त पूरा हो जाए, ये जहालत भरी सोच में पड़े में, इनको छोड़ दो। अब क्या इंसान ये समझता है कि हमने जो बढ़ा चढ़ा कर उन्हें दिया है इस दुनिया में, माल और बेटे, तो क्या समझता है इंसान कि हम जल्दी दे रहे हैं उसे बहुत खैरात में। यानी वो क्या सोच रहा है इंसान, कोई दीन पर अमल नहीं कर रहा है, कुछ दीन का काम नहीं कर रहा है, और अल्लाह ने उसको बहुत सारा माल दिया है और बच्चे भी दिए हैं, तो अल्लाह ताला इंसान की यहाँ पे भी साइकोलॉजी देखिए। हाँ, ऐसे लोग ये सोचते हैं कि अल्लाह ताला जो है ना मेरे से बहुत खुश है ना, इसलिए मेरे को बहुत अच्छा अच्छा दे रहा है। अल्लाह ताला बोल रहे नहीं, ऐसी बात नहीं है। बल ला यशउरून, अल्लाह ताला खुद बोल रहे हैं ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ भलाई का इरादा कर रहा हूँ इसलिए तुम्हें दे रहा हूँ। नो, ऐसी बात नहीं, बल्कि तुम्हें समझ नहीं है इस बात की, तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है कि मैं तुम्हें ये क्यों दे रहा हूँ। देखिए मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, दौलत माल बुरी चीज नहीं है, अपनी जगह बहुत अच्छी चीज है। अल्लाह से मांगिए, अल्लाह तू मुझे दुनिया का माल दे, अल्लाह तू मुझे माल दे, औलाद दे, लेकिन इस माल को आप हाथ में रखिए, दिल में उतरने मत दीजिए, क्योंकि ये माल जब इंसान के दिल में उतरता है ना, तो अल्लाह ताला वहां से रुखसत हो जाते हैं। फिर अल्लाह ताला नहीं रहते। अल्लाह ताला बोलते क्या करूं, इतना सा तो दिल है, तूने सारा उसमें माल की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत, शौहर की मोहब्बत, घर की मोहब्बत, घर के बर्तनों की, किचन की, इसकी उसकी भर रखी है, मेरा तो कोई जगह ही नहीं बचा उसमें। फिर अल्लाह ताला रुखसत हो जाते हैं, अल्लाह की मोहब्बत चली जाती है। तो देखिए माल अपनी जगह अच्छा है, लेकिन आप उसको अल्लाह की रजा के लिए इस्तेमाल करती हैं। बच्चे अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, बेटा हो या बेटी, लेकिन आप उसको अल्लाह के रास्ते में छोड़ रही हैं, अल्लाह की रजा के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। उनकी परवरिश आप अल्लाह की रजा के हिसाब से कर रही है, आप उनको दीन की तालीम दे रही है, ना कि दुनिया दुनिया दुनिया, तो फिर वो वबाल का काम करेगी आपके लिए। और अगर आप उसको अल्लाह की रजा के साथ ले रही हैं, हिदायत के साथ ले रही हैं, हिदायत के साथ लेने का मतलब ये है माल अल्लाह ने आपको दिया है, और उसके साथ साथ आपको ये शऊर दिया है, ये टैलेंट, ये हुनर अल्लाह ने दिया है कि उसको खर्च कहाँ करना है, कैसे करना है। आपको अल्लाह ने बच्चे दिए हैं, और आपको ये पता है, आपको ये हिदायत मिली है कि उन बच्चों की परवरिश किस तरीके से करना है। मुझे सिर्फ उसको दीनी एजुकेशन नहीं देना है, बल्कि उसको दीन की भी जो है वो तालीम देनी है, तो वो बच्चे आपके लिए जो है खैर का काम करेंगे। अपनी जगह सब अच्छे हैं, लेकिन इसके जरिए जो लोग अल्लाह को नाराज करते हैं, फिर अल्लाह ताला बहुत बुरी पकड़ करते हैं ऐसे लोगों के लिए। अल्लाह ताला बोल रहे हैं इन लज़ीना हुम मिन खश्यति रब्बिहिम मुशफिकून। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि बेशक वो लोग, इनकी तो बात छोड़ ही दीजिए आप आइए कुछ और पढ़ते हैं। अल्लाह ताला बता रहे बेशक वो लोग, वो जो अल्लाह की खशियत रखते हैं और लरसते रहते हैं। देखिए जरा महसूस करिए, क्या मैं अपने दिल में अल्लाह की नाफरमानी करते वक्त जरा भी डर महसूस करती हूँ, लरसती हूँ? अल्लाह ताला की नज़र में कौन है वो लोग जो अल्लाह के डर से खशियत रखते हैं? ये वो लोग हैं वो जो अल्लाह यानी उनके रब की आयतों पर वो ईमान रखते हैं, पहली क्वालिटी। दूसरी क्वालिटी ये वो लोग हैं जो अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करते हैं। और तीसरी क्वालिटी कि जब वो देते हैं जो उनको देना है, देने के बाद भी उनके दिल डरते ही रहते हैं। देखिए जरा कि वो उनके रब की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। अल्लाह अकबर।
इस आयत पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो बुरे बुरे काम करते हैं और अल्लाह के रास्ते में भी देते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ये वो लोग हैं, ये उन लोगों की बात है जो अल्लाह के नाम पर बहुत काम करते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च भी करते हैं, जिसको देने का हुक्म अल्लाह ने दिया है, चाहे वो रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, मिस्कीन हो, या फिर रास्ते के मुसाफिर हो, सबको देते हैं। उसके बावजूद दिल डरता है उनका। क्यों डरता है पता है? कि दे तो दिया मैंने, क्या पता लोग इसको वाहवाही का सबब न बना लें, क्या पता मेरे रब ने कबूल किया या नहीं किया। और देखिए बात यहाँ पे सिर्फ माल की नहीं है। अल्लाह ने आपको एजुकेशन अता किया, अल्लाह ने आपको तालीम दी है, इल्म दिया है, टैलेंट है आपके अंदर, सेहत है, आप लगा रही हैं, अपने आप को खपा रही हैं अल्लाह के रास्ते में। उसके बावजूद क्या आपके दिल में डर है कि क्या पता अल्लाह ने कबूल किया या नहीं किया है? ये अल्लाह को मतलूब है आपसे और मुझसे। करते रहो मेरा काम, लेकिन मेरा डर भी अपने अंदर रखो कि क्या पता मैं कबूल कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। देने के बावजूद दिल डरते, सीना चौड़ा नहीं करते, ओहो देखो हमने कितना खर्च किया, देखा मैं कितना खर्च करने वाला हूँ, देखा मैं उसकी जरूरत पे काम आता हूँ, देखो मैंने उसको दिया, उसको दिया, और देखा मैंने उसको क्या क्या सिखाया है। मुझे जो कुछ आता था ना मैंने उसको सब सिखाया, मैंने सिखाया उसको, मैंने मेहरबानी की है उसके ऊपर। ऐसा नहीं करता है शख्स। अल्लाह ताला बोल रहे खत्म सब तुम्हारा, तुमने लोगों के सामने बोल बच्चन क्यों करे, क्यों बोले ऐसा, जाओ। फिर ये लोग इस कैटेगरी में, मुशफिकून की कैटेगरी में तो बिल्कुल नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें लोगों से रिटर्न चाहिए जो उन्होंने किया, लोगों की वाहवाही चाहिए उनको। लेकिन ये ऐसे लोग होते हैं जो काम करने के बावजूद अपने अंदर डर रखते हैं। और ये बात कब आती है? अल्लाह ताला बोल रहे हैं उलाइका युसारिऊना फिल खैरात, जब उनके अंदर अल्लाह का डर, अल्लाह की तरफ लौटने का खौफ आता है, तो यही वो लोग हैं जो नेकी के कामों में बहुत जल्दी जल्दी करते हैं और वो उसमें एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते। चेक करिए जरा, ऐसी बातों को एक तरफ लिख लिया करो और अपने अंदर ये क्वालिटीज लाने की जो है वो कोशिश किया करो। जरा अपने आप को चेक करिए, क्या मैं दुनिया के काम में आगे आगे भागती हूँ? आज इसको ये खिला दूं, वो पका दूं, मेरी वाहवाही होगी, लोग मेरी जो है बहुत मतलब तारीफ करेंगे। अरे चलो चलो, उसका कुछ काम है, उसको मॉल में जाने का, उसको शॉपिंग कराने का, उसको पार्लर लेके जाने का है, उसका ये काम है, उसका वो काम है। आप इन चीजों में ज्यादा दौड़ धूप करती हैं, या फिर अरे अरे उसको कुछ सीखना है, चलो मैं सिखा कर आती हूँ, कोई बात नहीं वो नहीं आ पा रही तो मैं चली जाती हूँ। या फिर अल्लाह का कुछ काम, नेकी का काम, कि किसी को मेरी मदद की जरूरत है, मैं दौड़ कर चली जाऊं, अल्लाह की रजा के लिए दौड़ कर जाऊं, उसकी हेल्प करूं मैं। और अल्लाह ताला बोलते हैं कि वो इंतजार नहीं करते, मैं क्यों करूं, मई मिली थी क्या सबको नेकी करवाने के लिए, वो बैठी ना वो कर लेगी ना काम। कि कुछ लोग अगर पानी मांग रहे हैं तो एक दूसरे को तक रहे, अरे वो बैठी कर लेगी ना, मैं क्यों करूं, अकेले घर में मैं हूँ क्या सबका काम करने वाली। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए इंसान को। देखिए घर का काम करना, किसी की जरूरत पूरी करना, ये चीजें भी जो है वो नेकी की है। हाँ, शर्त ये कि आप उसको, लोगों को, घर वालों को खुश करने के लिए मत करिए, बल्कि आप उसको अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए करिए। फिर देखिए घर के काम में भी बड़ा मजा आता है, बहुत मजा आता है। जो काम अल्लाह को राजी करने के लिए करेगी ना, हर उस काम में आपको बहुत एक सेटिस्फैक्शन फील होगा। अल्लाह ताला बोल रहे हैं सिर्फ काम ही नहीं करते बल्कि एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते। अरे वो 5 वक्त की नमाज पढ़ती, मैं तो अब देखना तहज्जुद भी पढ़ के दिखाऊंगी। ये मामला होना चाहिए। ये नहीं कि अच्छा उसने ये ड्रेस खरीदी, अब तो वो 2,500 का खरीदी ना, मैं 4,000 का खरीद के दिखाऊंगी। देखना मैं तो ईद में उससे अच्छा कपड़ा लेके दिखाऊंगी। और दुकानदार को भी जाके बोलती वही जोड़ा दे ना मुझे जो अब तक मेरे मोहल्ले में, मेरे घर में कोई लेकर नहीं गए। इन चीजों में आगे बढ़ती हैं औरतें। अल्लाह ताला बोलते नहीं चाहिए, मैं इन चीजों में मत आगे बढ़ो, तुम मेरे पास कोई चीज तुमको देने के लिए है भी नहीं। इन चीजों में आगे बढ़ोगी तो बढ़ना है तुम्हें, तो मेरे काम में आगे बढ़ो। अब कोई ये बोले नहीं बाबा मैं नहीं कर सकती, मेरे लिए तो पॉसिबल है ही नहीं, मैं कैसे करूं, तुम्हें पता नहीं मेरे पास कितना काम रहता है, मेरे बच्चे हैं, शौहर है, ये है वो है, घर में जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, आपको क्या पता मेरे ऊपर क्या क्या है। तो अगली आयत सुन लीजिए, जिसको मैंने जो अपनी लाइफ में उतार कर देखा उसको, और यही मैं लोगों को जवाब देती हूँ। वला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, बस इतनी सी बात मुझे अल्लाह की समझ आती है। और नहीं हम जिम्मेदारी देते हैं किसी भी नफ्स को मगर जितनी उसकी ताकत है, दैट्स इट। कोई ये कहे ना तुम्हें क्या पता मैं अपने घर में कितना काम करती हूँ, तो मैं तो उसकी बात उसके मुंह पे ही दे मारती हूँ। मुझे मत सिखाओ, तुम मुझे मत बताओ, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो मुझे बता दिया।
तुम्हारी ताकत के हिसाब से अल्लाह ताला तुमसे काम लेते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी ताकत। अरे एक बात बताइए आप, अगर एक 2-3 साल का बच्चा है, आप उसको बोलोगे कि 10 किलो का बोझ उठा के जरा उठा के वहां से वहां रख दो, करोगे आप? बोलोगे क्या पाजी बेवकूफ़ों की तरह बात करते हो आप। तो नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह, आप अल्लाह के बारे में ये गुमान करती हैं कि अल्लाह ताला बेवकूफ़ाना बात करेंगे कुछ। नाउज़ बिल्लाह। इंसान के मामले में तो इंसान फौरन सामने वाले को बोलकर बात को ख़त्म कर देता है, तो यही मामला तो तुम अल्लाह के साथ कर रही हो। जब कभी कोई कोई भी अपने आप को सोचे ना, मैं बहुत बाबा काम करती हूँ, बहुत करती हूँ, तो मुझे मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता अगले का, जो भी बात है सच्ची बात है, क्योंकि मैं तो बहुत, जब आयतें हम पर खुल चुकी हैं, हम क्यों। और यकीन करिए मैं कभी किसी भी शख्सियत से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होती हूँ, नहीं होती इम्प्रेस में, और अल्लाह का शुक्र है नहीं होती। किसी की ज़ात से मैं जल्दी इम्प्रेस नहीं होती हूँ मैं। अरे जिस रब ने तुम्हें बनाया है, जिस रब की तरफ तुम्हें जाना है, उससे इम्प्रेस होइए ना। आज लोग छोटे छोटे एक्टर एक्ट्रेस को देख के इतना इम्प्रेस हो जाते हैं, इतना इम्प्रेस। क्या देना है वो एक्टर और एक्ट्रेस, तुम्हें क्या दे देगा बताइए? तुम्हारी दुनिया आखिरत कुछ बना रहा है क्या? तो ये देखिए कि कोई सब अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, और ये बात उनको समझाइए। अगर कोई ये बोले मैं नहीं कर सकती, इस आयत को याद कर लीजिए, तुम कितना झूठ बोलती हो। अल्लाह ताला तो ये बोल रहे हैं, वला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा। नाउज़ बिल्लाह, मतलब तुम अल्लाह की आयत का इनकार कर रहे हो। अरे अल्लाह ताला को पता है तुम ये कर सकते हो, एनकरेज करिए उनको। अल्लाह को पता है तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम कर सकते हो। क्योंकि अल्लाह ताला बोल रहा है कि मैं नफ्स के उससे उसकी ताकत से ज़्यादा किसी से काम नहीं लेता हूँ। और हमारे पास का रिकॉर्ड बताएगा, अल्लाह ताला बोलते हैं, और हमारे पास जो रिकॉर्डेड है वो तुम्हें पूरा पूरा सच बता देगा, और तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। मतलब किसी ने जो कोशिश की अल्लाह के रास्ते में, तो नाउज़ बिल्लाह कि कहीं अल्लाह ताला छुप छुपा कर रख देंगे, नो। अल्लाह ताला आपकी एक एक कोशिश को, आपके एक एक काम को अल्लाह ताला रिकॉर्ड कर रहे हैं कि आप दुनिया के मामले में भाग दौड़ कर रही हैं या दीन के मामले में कर रही हैं। दुनिया के मामले में सबकत कर रही है, एक दूसरे से आगे बढ़ रही है दुनियावी लेवल में, या दीन के लेवल में आगे बढ़ रहे हैं। चल बोले आई एम रिकॉर्डेड एवरीथिंग, आओ ना मेरे पास, तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा मैं, नुकसान कुछ नहीं करूंगा, तुम्हारा वादा है देख लो अल्लाह का। फिर कोई सोचे नहीं बाबा मैं दीन का काम कर रही, किधर मेरी नेकी किसी और को मिल गई तो फिर देखिए शक है तो घर बैठे रहिए, अल्लाह को जरूरत नहीं है आपकी, मत निकलिए अल्लाह के रास्ते में। क्योंकि जिस दिल में शक और शुबा आ गया अल्लाह और उसके रसूल के ताल्लुक से, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को उठाना पसंद नहीं करते। अल्लाह के रास्ते में आना है, खुले दिल से आइए, दिल और दिमाग को सारी बुराइयों से, खुराफातों से, सारे दुख तकलीफ से खाली करके आइए, तब जाके अल्लाह का काम आप कुछ कर सकती हैं। नहीं तो ऐसे रोते धोते लोग अल्लाह को पसंद नहीं बिल्कुल भी। जो काम का रोना रोए, शौहर का, बच्चों का, फैमिली का, इसका उसका रोना रो, अल्लाह बोलते घर बैठ के रो, तुम बाहर मत निकलो, तुम्हारा निकलना मुझे पसंद नहीं बिल्कुल। बाहर निकल के तुम लोगों को मेरी किताब क्या सुनाओगे, अपने ही दुखड़े रोते रोते रहोगे। तुम्हें क्या पता मेरे घर में कैसा है, तुम्हें क्या पता, देखो मैं कितनी उससे निकलती हूँ ये। अरे तुमने अल्लाह का काम किया या तुम अपने ही दुखड़े उनके घर में, ऐसे लोगों को बोलने को तो मिलता नहीं, एक दूसरे की सुनते नहीं, बाहर वालों को जाके दुखड़ा सुनाते हैं। फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते। देखिए अपने दिल और दिमाग को सारी जाहिलियत बातों से, सारे गम से, दुख से, तकलीफ से पाक कर दीजिए। उसके बाद अल्लाह ताला आपको चूज करेंगे और आपको मजा भी आएगा फिर काम करने में। इसका उसका दुख लेके बैठेंगे तो कुछ नहीं कर सकते। फिर मजीद अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं आयत नंबर 63 में, बल्कि उनके दिल जो है वो गफलत में पड़े हुए हैं इससे, और उनके पास दूसरे अमाल है इसके अलावा जिन पर वो अमल करते रहते। देखिए जरा बात आ गई मैं जो अभी बोल रही थी। कुछ लोग जो एक्सक्यूजेस देते हैं ना, अल्लाह ताला बोल रहे असल में वो उनका बहाना जो है ना, ये नहीं है रीजन ये है कि उनके दिल गफलत में पड़े हुए हैं, और इसलिए वो अल्लाह के रास्ते में काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा अल्लाह के दीन के काम के अलावा दूसरे बड़े झमेले पाल रखे हैं उन्होंने, बहुत दूसरे काम है उनके पास जो वो करते रहते। कितना फैक्ट देखिए, मुझे तो इंसान की एक साइकोलॉजी इसमें नजर आ रही है। बहाने जो मैं आपको बता रही थी ना, अरे तुमको क्या पता हमारे पास कितने काम है, तो अल्लाह ताला तो खुद बोल रहे हैं यहाँ पर, दूसरे काम पड़े में दिल पे जो है वो पर्दा चढ़ गया, उनके गिलाफ चढ़ गया, गफलत में गए वो, और फिर दूसरे तुम्हें क्या पता कितने काम है। अल्लाह ताला भी बोल रही है, ऐसे ही जवाब देंगे, तुम्हें क्या पता मेरे पास कितने काम है ये दीन के काम के अलावा से। अल्लाह ताला बोल रहा है और उसी पर अमल करते रहेंगे, करते दो इनको। कब तक करने दो? यहाँ तक कि इज़ा अखज़ना, यहाँ तक कि जब हम घेर लेंगे उनके खुशहाल लोगों को अजाब में। देखिए जरा, इंसान को खौफ आना चाहिए अगर वो अल्लाह के रास्ते में काम नहीं कर रहा है ना, तो वो जो बहुत खुशगवार जिंदगी गुजार रहा है ना,
بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کوئی اپنا عذاب اس کے اوپر بھیج دے اور وہ گڑ گڑانے لگے. کتنی فیکٹ ہے اس بات میں، دیکھیے ذرا. اللہ تعالیٰ بول رہے اچھے حالات میں نہیں آ رہے نا میرے راستے میں، برے حالات تمہارے اوپر ڈال دوں گا میں، اور اس کے بعد تم گڑ گڑاتے ایک دم گھسیٹتے گھسیٹتے میرے پیچھے آؤ گے اور گڑ گڑاؤ گے میرے سامنے. اس سے اچھا ہے ہاتھ پیر سلامت ہے، اچھا دماغ صحت سب کچھ ہے نا، ابھی اپنے آپ کو کھپا دو اللہ کے راستے میں، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہماری خوشحال زندگی کو جو ہے وہ عذاب بنا دے اور ہم گڑ گڑانے لگے. کتنا غصہ ہے دیکھیے اس آیت میں، اللہ کو کتنا غصہ آ رہا ہے. اچھے خاصے تم ہو، صحت ہے، ساری سہولت ہے گھر میں، مدد مل رہی ہے گھر کی طرف سے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود میں تم کو نکلنے کا دل نہیں کر رہا ہے، بڑی خوشحال زندگی گزار رہے ہو. ایسا معاملہ کروں گا نا تمہارے ساتھ، کچھ بھی کر سکتا ہوں میں. گڑ گڑاتے آؤ گے میرے پاس. پھر اللہ تعالیٰ، پھر دیکھیے اس وقت اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں گے. مت گڑ گڑاؤ میرے سامنے آج کے دن، بے شک تمہاری اب کوئی مدد نہیں کروں گا میں. کتنا غصہ دیکھیے ذرا، اللہ کی پناہ. کیوں غصہ آ رہا ہے اللہ کو؟ اس لیے قد کانت آیاتی تتلی علیکم، اس سے پہلے میری آیتیں تمہارے سامنے پڑھ پڑھ کر سناتا تھا کوئی کہ نکلو اللہ کے راستے میں، نکلو، کر لو، ابھی زندگی ہے، ابھی صحت ہے، گھر بار تمہارا اچھا ہے، اچھے اچھے شوہر مل گئے، اچھا گھر مل گیا، گھر والے اچھے مل گئے، نکلو نکلو. تو تم کیا کرتے تھے؟ پھر تم تھے اپنی ایڑیوں پر پھر جاتے تھے. اپنی ایڑیوں پر پھر جانا یعنی مجھے کیا ضرورت ہے یہ کام کرنے کی، جس کو ضرورت ہے وہ کرے نا، میں کیوں کروں، میں اچھی خاصی اپنے گھر میں بھلی اچھی خاصی، مجھے کوئی ضرورت نہیں اللہ کے راستے میں جانے کی. یہ رویہ ہوتا ہے ایسی عورتوں کا، ایسے لوگوں کا. چونکہ ہم عورتیں ہیں تو میں عورتوں کے تعلق سے زیادہ باتیں کرتی ہوں، مرد سے کوئی سابقہ پڑتا نہیں ہے. مرد بیچارے تو کمائی میں لگے رہتے ہیں، کیا کہیں ان کو. مزید اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تمہاری یہ حال تکبر کرتے ہوئے تم پھر جاتے ہو. اور کیا کرتے ہو؟ اچھا، تکبر کرتے ہوئے پھر جاتے ہو اور کس سے کہانیاں سمجھ کر دور بھاگتے ہو. دیکھو یہ سامرہ ہے نا، سامرن تہجرون، سامرہ تہجرون یعنی کہ تم اپنے بیڈ روم میں، ڈرائنگ روم میں، یعنی بالکل اپنے صحن میں بیٹھ کر جو ہے وہ یعنی کس سے کہانیاں سنتے رہتے ہو اور اللہ کی باتوں سے دور بھاگتے رہتے ہو. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر سے چپٹ کر رہ جاتے ہو، اور اس میں ہر وہ چیز آئے گی جو آپ کو ٹائم پاس کرواتی ہے. اس وقت ان کا صحن تھا ٹائم پاس کے لیے، آج انسانوں کے پاس ایک ٹاک شو جو ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ان کے پاس ٹائم پاس کرنے کے لیے. نہیں مانتے ہو؟ بولے ارے ہمارے پاس دوسرے بھی کام ہے نا کرنے کو، پھر بیٹھ کے ٹاک شو دیکھتے رہیں گے موبائل میں، ٹی وی میں، اور کچھ نہیں تو اس سے فون گھما گھما کر فالتو باتیں ہی کرتے رہیں گے. اور جب کہو تو بولیں گے تمہیں پتہ نہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اللہ کی پناہ عورتیں 2-2 3-3 گھنٹہ بیکار باتیں کرتی ہیں فون گھما کے، نہ کبھی فرینڈس کو، کبھی مائکے میں، کبھی اس کو کچھ نہیں تو پھر یعنی کچھ نہیں ملا تو چلو فون میں کچھ نہ کچھ ٹائم پاس کرتے رہو. اللہ تعالیٰ بولتے اس کے لیے ٹائم ہے تمہارے پاس، میرے دین کے کام کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے. اگلی آیت تو دیکھیے ذرا کیا بول رہے ہیں، افلم یدبرون القول ام جاءہم ما لم یأتی آباؤہم الاولین، کہ کیا پھر نہیں یہ دھیان دیتا ہے انسان، تدبر نہیں کرتا اس بات پر کہ آئی ان کے پاس جو نہیں آئی تھی ان کے بڑوں کے پاس پہلے سے. کتنا فیکٹ ہے دیکھیے اس آیت میں. اس سے پہلے آپ کے باپ دادا جو بھی گزرے ہیں، کیا ایسا کوئی ترجمے کی کلاس یا ترجمہ ان کو سکھایا گیا، یا کتاب کا کوئی فہم ان کو دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ بول رہے کتنی سہولت ہے تمہارے پاس، عقل نہیں ہے تم کو کہ تم سے پہلے باپ دادا جو چلے گئے ان کے پاس اتنی سہولت والی کوئی کلاس تھی، اتنا دین آسانی سے ان کو ملا تھا جتنی آسانی سے دین تمہیں مل رہا ہے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ تم میرے راستے میں کیوں نہیں نکل رہے ہو، کیوں نہیں کام کر رہے ہو؟ آپ مزید آگے بتایا جا رہا ہے. ابھی غصہ کم نہیں ہو اللہ کا، رکو ذرا. کیا نہیں وہ پہچانے اپنے رسول کو تو یہ ان سے انجان بنے رہے؟ کیا آج کون سے مسلمان کو یہ نہیں پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کی طرف جو بھیجے گئے وہ آج کون ہے؟ اللہ تعالیٰ بول رہے کیا ان کو پتا نہیں ہے کہ کس کو فالو کرنا ہے کس کو نہیں؟ اس لیے ان کو جو ہے مطلب پہچان نہیں رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو ان کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ کیا کرے، کس کے طریقے پر چلے، انجان بنے ہوئے میرے رسول سے. اچھا انجان نہیں بنے تو ام یقول بھی جن، کیا یہ سب کہتے ہیں کہ میرے اس رسول کو جنات نے چپٹ لیا، جنون ہو گیا ان کو؟ بلکہ
आ गया है उनके पास हक, और अक्सर वो हक के इनकारी है, हक को नापसंद करने वाले। ये असल बात होती है। देखो सबको पता है कि कुरान और सुन्नत पर अमल करना है, फिर क्यों नहीं करते? क्योंकि फिर जिंदगी के ऐशो आराम पर चोट पड़ेगी, हम उनके फिर दीन के हिसाब से हम काम नहीं कर सकेंगे। हमारे तो सारे कारोबारी सूद के ऊपर चलते हैं, सारा इंटरेस्ट हमने ले रखा है, कभी होम लोन के नाम पे, कभी स्टडी लोन के नाम पे, एजुकेशन लोन, ये लोन, कार लोन, ये लोन। अभी हम जब किताब पर अमल करेंगे तो हमारी तो चोट पड़ने वाली है इसके ऊपर। ये है अल्लाह ताला बोल रहे हैं, फिर चोट पड़ती है ऐसे लोगों के दिलों पर। और फिर ये कलाम किसको नापसंद आता है? ये ऐसे लोग जिनके लाइफ स्टाइल पर ये चोट डालता है। फिर उनको मुश्किल होता है अल्लाह के दीन पर काम करना और दीन दूसरों तक पहुंचाना। कोई भी पलट के बोल सकता है तुम हमको सूद लेने से रोक रहे हैं, खुद देखो तुमने कितने लोन ले रखे हैं, खुद देखो तुम क्या क्या करती रहती हो, खुद देखो तुम पार्टीज में जाती हो, ये करती हो। तो देखिए इंसान को पहले अपने आप को पूरा तरीके से पाक साफ करके उसके बाद अगर वो निकले तो कोई हुज्जत वो लोगों पे नहीं छोड़ता है कि तुम मेरी तरफ उंगली उठाओ। अल्लाह ताला मुझे और आपको सही समझते बता रहे हैं अगली आयतों में कि क्या वजह है जो अल्लाह ताला इंसानों को उनकी मनमानी का दीन पे अमल करने नहीं देते। वजह ये है, अल्लाह ताला बोल रहे हैं और अगर हम पीछे चले हक के, उनकी मनमानी के, यानी अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि अगर लोगों के अगर ख्वाहिशात पर उनकी मनमानी पर चले तो यकीनन जो है जमीन और आसमान में फसाद मच जाएगा, उनके दरमियान जो कुछ भी है उसमें फसाद मच जाएगा। बल्कि दिया हमने उनको उनका जिक्र, उनका नसीहतनामा, फिर वो उसके जिक्र से मुंह मोड़ने लगे। देखिए जरा, और सही बात है, इंसान की ख्वाहिशात के अकॉर्डिंग अगर दीन पर अमल करने को होता ना तो सबकी सोच अलग, सबके मिजाज अलग, क्या बनता दीन का? कुछ नहीं बनता। अल्लाह ताला बोल रहे इसीलिए हमने एक कॉमन सा जिक्र यानी कुरान इनको दिया ताकि सारे लोग एक ही चीज पर अमल करें, फिर भी इससे मुंह मोड़ते हैं। बता आगे मजीद अल्लाह ताला बता रहे हैं क्या, हाँ, अम तसअलू, क्या तुमसे पूछते हैं वो सब, हाँ, किस बदले का, यानी हाँ, क्या तुम सवाल करते हैं उनसे किसी भी बदले का, फिर वो सब निकालते हैं आपके सामने कोई माल। मतलब अल्लाह ताला बोल रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्या बात है, क्यों ये लोग आपकी बात नहीं सुन रहे? क्या आप उनसे कोई फीस ले रहे हो क्या? कोई माल मांग रहे हो क्या अपनी रिसालत पहुंचाने के लिए? तो भूलिए मत, वह खैरुर राज़िकीन, अल्लाह तो बेहतरीन राज़िक है। कितनी खूबसूरत बात है। दाइए दीन के ऊपर सवाल किया जा रहा है, क्या हो गया, लोग तुम्हारी बात क्यों नहीं मान रहे? तुम उनसे कोई फीस ले रहे हो, कोई उजरत ले रहे हो क्या? तुम माल मांग रहे हो क्या, जो तुमसे दूर दूर भाग रहे, तुम्हारी बात नहीं मान रहे? और देखिए ये बहुत बड़ा फैक्ट है, जो दीनदार पैसे की नियत से दीन में आता है ना, यकीन करिए उसकी बातें लोगों पर असर नहीं करती हैं, उसकी बातें, क्योंकि मकसद सही नहीं है। और ऐसा दाइए दीन जिसका मकसद सिर्फ ये कि अब मैं कैसे तैसे अल्लाह का कलाम लोगों तक पहुंचा दूं, दैट्स इट। ये हुक्म अल्लाह ने दिया है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला बोल रहे रिस्क की फिक्र क्यों कर रहे हो, मैं सबसे बेहतर राज़िक हूं ना, अरे मैं दूंगा ना तुम्हें, तुम्हें लोगों से क्या उम्मीद रखी है? और ऐसे लोग जो दीनदारी को दुकानदारी बनाते ना, यकीन करिए उनकी बातों पर लोग अमल नहीं करते। क्यों? क्योंकि तौफीक ही नहीं मिलती है लोगों को। तौफीक क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उनका मकसद सही नहीं होता है। वो तो आते बस कुर्सियों पे बैठ के, स्टेज पे बैठ के बड़ी बड़ी हाँक के चले जाते, अगले के दिल पर तो कोई बात ही असर नहीं करी, क्योंकि उनका मोटिव सही नहीं था, उनका एम सही नहीं था कि लोगों के दिल में अल्लाह की बात उतर जाए। तो देखिए कभी भी रिज्क की फिक्र मत करिएगा। अल्लाह के रास्ते में आप आएंगी तो ये मत सोचिएगा हाय मैं इतना अच्छा जॉब करती थी, चला गया मेरे हाथ से, सारे पैसे जाते रहे, अब क्या करूं मैं, चलो दीनदार कोई दुकानदारी बना लेती हूँ। नहीं, कभी मत करिएगा इस चीज को, नहीं तो अगले के दिल पर आपकी बात का कोई असर नहीं होने वाला है। आपको किसी को जांचना है ना अगर कि वाकई ये सच्चा दीनदार है या नहीं, वाकई ये अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहा है, तो इस तरीके से आप उसको जांच सकते हो। आपसे कोई उजरत मांग रहा है, मांग कर ले रहा है, आप किसी को दे रहे हो, दैट इज डिफरेंट, दैट इज डिफरेंट। मुझसे इतने लोग कहते हैं, मैंने कहा नहीं, मुझे जो देना है अल्लाह देगा ना, मैं आपसे क्यों लूं? अल्लाह का शुक्र है कि मैंने, यानी देखिए जब कहते हैं कि पेशेंस जब इंसान का एम्बिशन बन जाता है ना, फिर उसको दुनिया की कोई फिक्र नहीं होती है। मेरे पहले बहुत बड़े बड़े दूसरे शौक थे, ये सिखा दो, वो सिखा दो, वो सिखा दो, और कोई मुझे आज कहता है कितनी बेवकूफ है ये, इतने सारे कोर्सेस करके इतने सारा सिखाना समझाना, एक इंस्टीट्यूट में एज ए प्रिंसिपल होने के बावजूद सारा दुनिया का इतना माल छोड़ के ये दीन में आ गई, क्या मिल रहा है इसको? मैंने कहा तुम्हें क्या पता मुझे क्या मिल रहा है? मुझे दुनिया का सबसे बड़ा जो सुकून मिल रहा है अल्लाह की तरफ से, ये मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है कि दुनिया की दौलत सब खर्च करके भी मैं वो सुकून हासिल नहीं कर सकती थी जो मुझे अल्लाह के रास्ते में मिल रहा है। वो मेरे और अल्लाह के बीच की बात है, मैं सबको क्यों बताती फिरूं?
मैं तो बताना भी जरूर नहीं समझती किसी को। मजीद अल्लाह ताला बता रहे हो व इन्नका, और बेशक आप जरूर बुलाते रहिए इनको सीधे रास्ते की तरफ। ये है अल्लाह ताला बोल रहे, देखिए ठीक है आपको वो कुछ भी कहें कुछ भी करें, आपकी बात नहीं भी माने, लेकिन आप लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना बंद मत करिए। और बेशक वो लोग जो नहीं ईमान रखते आखिरत पर, ओके, और सीधे रास्ते से वही लोग कतराते। खत्म बात, सीधी सी बात है। जो लोग के अंदर सही किताब और सुन्नत पर अमल करने का जज्बा नहीं होगा, यही लोग आपकी बातों से कतराएंगे। तो ऐसे को छोड़िए ना, जो लोग इंटरेस्टेड है उनके पीछे लगिए ना। अल्लाह ताला बोल रहे और अगर हम उन पर रहम करें और दूर कर दें जो उन्हें तकलीफ ओके 75 ना, जो उन्हें तकलीफ पहुंची है, तो हाँ, तो वो आड़े रहते हैं, वो अड़े रहते हैं अपनी सरकशी और अंधे बने रहते हैं। देखिए इंसान की ये भी एक साइकोलॉजी है। अल्लाह को पुकारता है, पुकारता, अल्लाह मेरी तकलीफ दूर कर दे, अल्लाह मुझे ये चीज दे दे, वो चीज दे दे। अल्लाह ताला जब अता कर देते हैं, तकलीफ दूर कर देते हैं, अल्लाह ताला बोलते हैं उसके बाद फिर वो सरकशी में आ जाता है, मुझे पुकार नहीं छोड़ देता है। और दर हकीकत पकड़ लिया हमने उनको अजाब में, और जो जो थे वो झुकते थे अपने रब के लिए, और जो नहीं वो झुकते थे अपने रब के लिए, और जो नहीं वो आजिजी करते थे। क्या पता चला, इंसान के ऊपर जो दुख परेशानियां तकलीफें आती हैं, तो अल्लाह ताला का ये मकसद होता है ये करने के पीछे कि मेरे सामने रोए गिड़गिड़ाए। अल्लाह ताला तो बोल रहे तुम पर कोई परेशानी आई तो तुम्हें ये होना चाहिए था कि मेरे सामने आजिजी से झुकते गिड़गिड़ाते। यहाँ तक कि जब हमने खोल दिया उन पर दरवाजे सख्त अजाब के, तब उनकी उस वक्त सारी आस टूट जाती थी। और जब क्या हुआ, अल्लाह ताला ने इतना खुशहाल फैमिली दिया, इतने खुशहाल तरीके से रह रहे हो, शुक्र करने के बजाय अकड़ दिखा रहे हो अल्लाह को। जब जरा सा अल्लाह ने तुम्हारी पकड़ कर ली, वो तुमसे खुशियां, वो ऐशो आराम जाता रहा, तो तुम्हें अल्लाह के सामने आजीजी करनी चाहिए थी ना। नहीं करे, अल्लाह ताला बोल रहे ठीक है नहीं करे ना, अब तुम्हारे पर और ज्यादा अजाब देकर तुमको दिखाऊंगा। और जब अल्लाह ताला तमाम चीजें उनसे छीन लेते हैं तो वो बड़ा मायूस हो जाता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला बता रहे वहु अल्लाह, अल्लाह वो जात है वो जो अता करती है तुम्हें समात, सुनने के पावर, देखने का पावर, और दिल की कैफियत भी तुम्हें वो अता करती है। क्यों? ताकि तुम आंखों से गलत चीजें देखो, कानों से गाने सुनो, और तुम्हारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत के अलावा किसी और की मोहब्बत बिठा लो। नहीं, अल्लाह ताला बोल रही यही तो बात है ना, कलीलन मा तशकुरून, बहुत थोड़े हैं तुम में से जो शुक्र गुजार हैं, जो शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है कि ऐसा कान दिया जो जिसमें अल्लाह का कलाम जाता है। अल्लाह तेरा शुक्र है कि इन आंखों से तूने हक देखने की सलाहियत दी है और अच्छी अच्छी चीजें मैं देखती हूँ। अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे दिल पर तूने कलाम का पानी छिड़काव किया, तेरे कलाम का पानी मेरे दिल पर पड़ रहा है। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तेरी और तेरे महबूब की और तेरी किताब की मोहब्बत इस दिल में आ रही है। ये शुक्र होता है। और अल्लाह ताला वो जात है वो जो फैला दिया तुमको जमीन में, और उसी की तरफ तुम सब इकट्ठे किए जाओगे। अल्लाह वो जात है जो जिंदगी देता है, मौत देता है, और वही है जो बदलता है रात को दिन में। तो क्या फिर तुम अकल से काम नहीं लोगे? तुम्हें अकल नहीं आती है जरा से भी? बल्कि उन्होंने कहा वही कुछ जो कहा पहले के लोगों ने। क्या कहा? देखिए इतनी बड़ी बड़ी निशानियां देखने के बावजूद भी अभी तक भी उनको अल्लाह पर और आखिरत पर यकीन नहीं आ रहा। कहने लगे क़ालू अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन व इन्ना लमबऊसून, कहने लगे क्या जब हम मर जाएंगे और हम हो जाएंगे मिट्टी, हड्डियां हमारी गल जाएंगी, सड़ जाएंगी, बोसीदा हो जाएंगी, कैसे हम दोबारा उठाए जाएंगे? ये सबसे बड़ा जो है उनका सबसे बड़ा इनकार यही चीज का था। और ये चीज आखिरत से इंसान को बेखबर कर दी थी। जिन लोगों को अल्लाह के सामने खड़े होने का डर होता है, खौफ होता है, तो वो लोग कभी भी जो है वो गफलत की जिंदगी नहीं गुजारते। दर हकीकत वादा किया जा चुका है। अल्लाह ताला बोल रहे जरा इनको बता दो, तुम्हें जरा डाउट हो रहा है ना, वादा किया जा चुका है, किया है हमने तुमसे भी और तुम्हारे बाप दादा से भी इससे पहले। इतना सब सुनने के बाद भी कहते थे इन हादा इला असातिरुल अव्वलिन, अरे कुछ नहीं, अरे सब पहलों की कहानियां, किससे कहानी कब से हम सुनते चले आ रहे। जैसे देखिए कि अगर आप किसी के सामने बातें पेश करें और आपको वो जवाब देते पलट के, क्या बाबा कब से अपने बचपन से सुनते चले आ रहे, कयामत आएगी आएगी, अब तक तो आई नहीं तो अब क्या आएगी? आप यकीन करिए कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, और वो मुसलमान ही बोलते हैं। आप जरा पूछिए इनसे किसकी है जमीन और जो कुछ इसमें है, अगर तुम हो जानते तो जवाब दो। जरूर वो सब कहेंगे अल्लाह की है। आप फिर पूछिए, आप कह दीजिए क्या फिर तुम नसीहत नहीं मतलब हासिल करते हो, सुधरते क्यों नहीं हो? जब तुम्हें पता है ये जमीन अल्लाह की, ये आसमान अल्लाह का, इसके बीच में जो चीजें सब अल्लाह का, तो फिर तुम कैसे बेखौफ की जिंदगी गुजार रहे हो?
जरा आप पूछिए इनसे कौन है रब 7 आसमानों का और रब अर्श अजीम का रब कौन है? जरूर वो सब कहेंगे अल्लाह, एक अल्लाह है। तो आप कहिए क्या फिर तुम लोग फिक्र नहीं करते हो, तुम्हें गौर फिक्र नहीं करते हो तुम कि जब सब कुछ अल्लाह कर रहा है तो वो तुम्हें दोबारा जिंदा नहीं कर सकता? आप पूछिए किसका इख्तियार है बादशाहत, हर चीज की बादशाहत पर किसका इख्तियार है? और वो लोग जो और वो कौन है जो पनाह देता है और नहीं वो पनाह दे सकता है उसके खिलाफ कोई, अगर तुम जानते हो। जरूर वो कहेंगे अल्लाह के सिवा कोई पनाह नहीं देता है। आप कह दीजिए तो किस दर तुम धोखा खाए जा रहे हो, कहाँ जादू में तुम फंसे जा रहे हो? बल्कि हकीकत ये है कि दिया हमने इंसान को हक की बात, और बेशक वो इसका जो है वो झूठा ही रहा, इसको झूठलाने वाला ही बना रहा। यानी इंसान के पास हक आने के बावजूद इसको मान नहीं रहा है। नहीं बनाया अल्लाह ने किसी को औलाद और नहीं है उसके साथ कोई माबूद दूसरा। अगर ऐसा होता तो इस सूरत में यकीनन हर माबूद वो जो उसने पैदा किया है उस पर चढ़ाई करता और एक दूसरे पर आगे बढ़ने की कोशिश करते। सुबहान अल्लाहि अम्मा यसिफून, बल्कि अल्लाह की ज़ात पाक है उन तमाम बातों से जो तुम बयान करते हो। अल्लाह की ज़ात तो ऐसी आलिमुल गैब व शहादा, वो गैब और जाहिर का जानने वाला है, बहुत बुलंद है उन तमाम बातों से जो वो शिर्क करते हैं। आप फिर उसके बाद देखिए ओके, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला बोल रहे कि आप दुआ करिए, रब्बी इम्मा तुरियन्नी मा तुअदून, ऐ मेरे रब अगर आप दिखा दे मुझे जो इनसे वादा किया जा रहा है। रब्बी ला तजअलनी मिन कौमी ज़ालिमीन, ऐ मेरे रब तू नहीं शामिल कर ऐसे गुनाहगार लोगों पर। यानी कि या अल्लाह मैंने अपनी तरफ से सारी कोशिश कर ली, तुझे पता है मुझे जितना पहुंचाना था लोगों को मैंने पहुंचा दिया, अब ये लोग अमल नहीं कर रहे ना अल्लाह, अब तू अपना वादा ला के दिखा। अल्लाह तू अपना वादा जो अजाब का लाएगा, इन पर आफत बलाएं जो आएंगी ना, देख मुझे ऐसे लोगों में तू शामिल नहीं करना। ये दुआ अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखा रहे हैं कि देखिए मैं पकड़ तो जरूर करूंगा उन लोगों की जो दीन से हटे हुए हैं, हाँ लेकिन ये दुआ करिए आप लोग कि अल्लाह मेरा समाज, मेरे आस पड़ोस के लोग, मेरे रिश्तेदार सब इतनी बुराइयों में भरे हुए हैं, इतनी बुराइयों में गुनाहों में डूबे हुए हैं, अल्लाह कभी मैं इनके बीच में रहूं ना और कभी इनके ऊपर तेरा अजाब का हुक्म हो जाए ना, अल्लाह तू मुझे बचा लेना। क्यों? ये दुआ अल्लाह ताला सिखा रहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू मुझे और आपको। देखिए नहीं मांगेंगे ना तो बहुत पॉसिबिलिटी कि हम भी उस लिपेटे में आ सकते हैं। मजीद अल्लाह ताला बता रहे हैं और बेशक हम दिखा रहे हैं आपको, अल्लाह ताला बोल रहे हैं इस पर हम दिखा रहे हैं आपको जो इनसे वादा किया गया जरूर, यानी हम दिखा दें इनको, हम कुदरत रखते हैं, हम पूरी कुदरत रखते हैं कि इन पर अजाब भेज दें। तो क्या करे इंसान फिर, इतनी बुराइयां समाज में फैली हुई, करे क्या फिर, इतना बेबस हो जाता है ना एक दाई दीन सारी कोशिश के बाद। अल्लाह ताला बोल रहे वही करो जो मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, इदफा बिल्लती हिया अहसनु सय्या, सो दूर करते रहिए वो जो बेहतरीन तरीका है उस तरीके से आप बुराई को दूर करते रहिए। नहीं इंसान अच्छाई से फिर बुराई को दूर कर सकता है। नहनु आलमू, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, हम जानते हैं उन तमाम बातों को जो वो सब बयान कर रहे हैं। देखिए कितनी प्यारी बात है, अल्लाह को कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं है, अल्लाह को सब पता है, फिर करे क्या इंसान। मजीद अल्लाह ताला मुझे और आपको समझा रहे हैं कि अल्लाह के रास्ते में जब कभी तुम्हें ऐसी बात लगे कि दिल ना करे काम करने का, आपको ऐसा लग रहा है कि शैतान वसवसा डाल रहा है, तो फौरन ये दुआ पढ़ लिया करो। वकुल, दुआ क्या है, रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून, ऐ मेरे रब मुझे आपकी पनाह चाहिए। अल्लाह मैं तेरी पनाह में आती हूँ शयातीन की छेड़छाड़ से, शयातीन के वसवसे से, और मुझे पनाह चाहिए है मेरे रब कि वो मेरे करीब भटके भी। कितनी खूबसूरत दुआ है, देखिए कभी सुस्ती आए ना, नहीं नहीं जाने दो मुझे नींद आ रही, मैं क्लास अटेंड नहीं करूंगी, फौरन ही दुआ पढ़ लो। कभी नेकी का काम करने का मौका मिले और आपको पूरा आपके ऊपर मतलब अथॉरिटी है कि आप कर सको, उसके बाद आप नहीं कर रहे हो, फौरन ही दुआ कर लीजिए, रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। यहाँ तक कि जब आ जाती है उनमें से किसी को मौत तो वो कहता है रब्बिरजिऊ, ऐ मेरे रब मुझे वापस लौटा लीजिए ताकि मैं अमल करूं नेक, दुनिया में जो छोड़ बैठा था
हरगिज ऐसा नहीं होगा, बेशक ये बात हो गई है, हाँ, जिसे वो कहे जा रहे हैं। अल्लाह ताला बस यही कि तो बात हो गई, खत्म बात, और उनके आगे आड़ होगी उस दिन तक जब वो उठाए जाएंगे। या रब्बी, ये उन लोगों की बात है, इन लोगों की बात है कि अल्लाह ताला बोल रहे दुनिया में मेरे दाई दीन ये रसूल अपनी सारी तालीमात तुम तक पहुंचाने की कोशिश कर लिए, हाल तुम्हारा ये था कि नहीं माने नहीं माने नहीं माने, अपनी मर्जी का दीन चलाते रहे ना। अल्लाह ताला बोल रहे जब इनको मौत आएगी ना, मौत आने के बाद ये कहेंगे या अल्लाह प्लीज भेज देना दुनिया में, भेज देना अल्लाह ताला, देख हम लोग फिर है ना जो पहले काम करते थे ना वो नहीं करेंगे, अच्छा अच्छा काम करेंगे। अल्लाह ताला बोल रहे इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, ये बात तो पहले से तय हो चुकी थी, मरने के बाद सारे अमाल का रास्ता जो है सारा खत्म हो जाएगा तुम्हारा। अल्लाह ताला बोल रहे हैं फिर इनके आगे एक आड़ हो जाएगी, यानी ये जो है आलम में बरज़ख में जमा कर दिए जाएंगे, कब तक, उठाए जाने वाले दिन तक। और किसी को नहीं पता है कि वो आलम बरज़ख में, यानी मरी हुई रूहें जहाँ पर जमा की गई हैं, आलम बरज़ख उसको कहा जाता है, कितने साल रहेंगे अल्लाह आलम। अल्लाह अकबर। फिर कब उठाए जाएंगे वो लोग, फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर, फिर जिस वक्त सूर फूका जाएगा, जिस वक्त सूर में फूका जाएगा, फिर ना कोई रिश्तेदारी होगी इंसानों के दरमियान उस दिन, और ना ही उन्हें एक दूसरे का हाल पूछने की फुर्सत होगी। तब तो फिर नफसी 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 होगा। दुनिया में बड़ा तुम दीन पर तुम रिश्तेदारों को सबसे बड़ा हथियार बनाते थे दीन पे नहीं आने का। हमारे रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, हमारे पड़ोसी नाराज हो जाएंगे, दोस्त अहबाब जो है वो नाराज हो जाएंगे। अल्लाह ताला बोल रहे आओ जरा मेरे पास, कयामत के दिन कोई रिश्तेदारी काम नहीं आएगी और कोई एक दूसरे को पूछेगा भी नहीं। आज सबसे बड़ी रीजन यही, सबसे बड़ी रुकावट यही होती ना, नहीं बाबा हमारे रिश्तेदार नहीं करते, फिर वो हमारे किसी रस्म रिवाज में नहीं आएंगे, वो हमको बुलाएंगे भी नहीं, ना आएंगे। अरे मत आए, अल्लाह की बला से जाए, मत आए, पूछे भी ना। मुझे तो कितने लोगों ने पूछना ही छोड़ दिया, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, अल्लाह तेरा शुक्र है कि फालतू रस्म रिवाज में लोगों ने मुझे पूछना छोड़ दिया। मैं तो शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का कि बला टली ऐसे लोगों से तो, कि जो पूछते नहीं है मुझे, चाहे वो मेरे रिश्तेदार हो, दोस्त अहबाब हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, सबको पता चल गया ना मैं किस तरीके की हूँ। इसी और एक दफा ही मना किया था मैंने, आप मुझे मत बुलाया करो, आप जो रस्म रिवाज करती है मेरे घर कोई चीज भेजा भी मत करो, चाहे वो मेरे सगे रिश्तेदार ही क्यों ना हो। और अल्लाह का शुक्र है ना हमारे यहाँ ऐसी कोई हराम चीज आती है और ना हम जाते हैं खाने को किसी के घर पे, शुक्र है अल्लाह का। बुलाते नहीं तो जाते नहीं, और बुलाते बुलाएंगे कैसे, हमने तो सामने से मना कर दिया उन्हें कि बुलाना, ऐसी दावतों में हमें कभी नहीं बुलाना। और ऐसी चिढ़ बैठी है लोगों के दिलों में, मेरी ऐसी चिढ़ बैठी है, और मैं बोलती अच्छा है अल्लाह ताला, सुकून है मेरी जिंदगी में, ऐसे लोग जो मेरी जिंदगी से चले गए, सुकून है, शुक्र है तेरा, जाए भला तो टली मेरी जिंदगी से ऐसे लोगों की। अतः बोल रहे फिर उस दिन क्या होगा, फिर जिसका भारी होगा उस दिन वजन, तो ऐसे लोग ही कामयाब होंगे। और जिस शख्स का जो है वजन या फिर वजन से मुराद क्या समझे, आपकी बॉडी का वजन नहीं, ये अमाल का वजन है। फिर यही लोग हैं जिनका वजन, अमाल का वजन जो है, नेकियों का वजन जिनका जो है वो हल्का होगा, तो ये लोग नुकसान उठाएंगे अपने आप में और ये जहन्नम में हमेशा रहेंगे। अल्लाह अकबर। झुलस दी जाएंगी उनके चेहरों को आग से, और उनमें से उनकी उससे जो है उनकी शक्लें तक बिगड़ जाएगी। और उनसे पूछा जाएगा बताओ जरा, क्या तुम पर तुम्हारे रब की आयतें जो वो पढ़ी नहीं जाती थी, और तुम थे इससे पहले झुटलाने वाले, क्यों नहीं मानते थे जिंदगी। देखिए कितनी हसरत भरी आयतें, इंसान को तो आंखें खोल लेनी चाहिए अपनी ऐसी आयतों से। कयामत के दिन डेफिनेटली ऐसा होगा, वो सब कहेंगे ए हमारे परवरदिगार, गालिब आ गई थी हम पर हमारी बदबख्ती और हम थे गुमराह लोग। उस वक्त एक्सेप्ट करने से क्या फायदा, अभी एक्सेप्ट करो ना कि हाँ वाकई हम गुमराह हैं, हमें जरूरत है हिदायत की, अल्लाह की। उस वक्त कोई काम नहीं आएगा ऐसा बदबख्ती और ये वो। ए हमारे रब निकाल दीजिए ना हमें यहाँ से, फिर हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, बेशक हम ही गुनहगार हैं। अल्लाह ताला फरमाएंगे पड़े रहो इसी में, तुमसे कोई बात नहीं करेगा और मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी है। कितना गुस्सा है अल्लाह को, देखिए पड़े रहो यहीं पर इसी जहन्नम जहन्नम में। बेशक वो लोग थे एक ग्रोह मेरे बंदों में से। अब अल्लाह ताला बता रहे हैं, अब ये प्रोटोकॉल दिया जा रहा है दीनदारों को कि जिन्होंने अपनी जिंदगी खपा दी थी और जिन लोगों ने बात नहीं मानी थी उनका हशर क्या हुआ, और जिन लोगों ने खपाई अपनी जिंदगी उनके बारे में अल्लाह ताला बता रहे। तुम्हें पता है जमीन पर हुए, जमीन पर मेरा एक ग्रुप ऐसा था मेरे बंदों में से जो वो कहते थे हमारे रब हम ईमान लाए हैं, बख्श दीजिए हमें, रहम पर करिए हम पर, और तुम आप ही जो है बेहतरीन रहम करने वाले हैं। तो हमने बनाए थे उनका नहीं सॉरी फत्तखज़्तुमूहुम, फिर तुम लोगों ने मजाक बनाया था उनका। देखिए आज दीनदार
خوش ہو جائیں کہ اللہ ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ آپ کا اگر کوئی مذاق بناتا ہے تو بنانے دیجئے، جو لوگ دین پر چلنے سے آپ کا مذاق بنائیں گے، پیچھے اللہ نے بتا دیا کہ میں ان کو جہنم میں ڈالوں گا، ان کے چہرے کو جھلسا دوں گا، ان کی شکلوں کو بگاڑ دوں گا۔ کیوں بھائی، کیوں اللہ کو اتنا غصہ؟ اس لیے کہ یہ دنیا میں دینداروں کو دیکھ کر اپنی شکلیں بگاڑتے تھے، ناک منہ چڑھاتے تھے، آئی بڑی دین کا کام کرنے والی، آئی بڑی مجھے سمجھانے والی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بول رہے ہیں تم مذاق بناتے تھے میرے اس دیندار لوگوں کا، وہ تمہیں دین کی دعوت دیتے تھے تو ان کا مذاق بناتے تھے، یہاں تک کہ تم ان کا مذاق بناتے تھے، بھلا دیا تھا تم نے میری نصیحت کو۔ تم سے میں نے وعدہ لیا تھا کہ کوئی دیندار اگر تمہیں دین کی دعوت دینے آئے تو اس کی بات ماننا، اس کی ہیلپ کرنا، بھول گئے تھے تم، اور تم بہت حسین کرتے تھے ان کے اوپر۔ اوہو، یہ آئی آپا جان بڑی علامہ اپنے آپ کو سمجھتی، آئی بڑی دیندار ہم کو سکھانے والی، دیکھو تو کیسے کپڑے پہنتی ہے، دیکھو تو کیسے چلتی ہے، دیکھو تو ہوٹلوں میں کھانا کھاتی ہے۔ اس طریقے سے تم دیندار کا مذاق بناتے تھے۔ یا الہی، اللہ اکبر۔ اللہ ایسے لوگوں کو جو بے دینی کا کام کرتے تھے، دینداروں کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ تعالیٰ بولتے آؤ ذرا، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آج میں انہیں کیا پروٹوکول دینے والا ہوں۔ انی جزیتم الیوم بما صبروا، یہ میرے دیندار تمہاری باتوں پر جو صبر کرتے تھے نا، بے شک میں نے انعام دیا انہیں آج ان کے صبر کی وجہ سے کہ وہ ہم الفائزون۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا کریے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس میں شامل کر دے کہ یہی لوگ کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ سرٹیفکیٹ وہ داعی دین کو ملتی ہے جن کا دنیا میں مذاق اڑایا جا چکا ہے۔ خوش ہو جائیے آپ اور میں اگر ہمارے پیچھے آگے کوئی ہمارا مذاق اڑاتا ہے تو، اس لیے مجھے فرق نہیں پڑتا، چاہے میرے پیچھے کوئی مذاق اڑا لے اور چاہے آگے اڑا لے، پیچھے اڑا لے، کہیں بھی اڑا لے۔ انہیں کیا پتا کہ اللہ نے ہمارے لیے آگے کیا رکھا ہے، اللہ نے ہمارے لیے یہ فائزون رکھا ہے۔ دیکھیے ذرا سورت کا اختتام ہے، سورت کے شروع میں بھی ہم نے جو یہی چیزیں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو کامیاب کریں گے۔ لمبا سفر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے ٹائٹل دیا ہے کہ وہ لوگ جو دنیا میں مذاق اڑوا چکے ہیں دین پر چلنے کی وجہ سے، میں انہیں کامیاب کروں گا۔ یا ربی، اللہ تعالیٰ اوکے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کتنے برس رہے تم زمین میں، برسوں کی تعداد تو ذرا بتا دو۔ وہ سب کہیں گے رہے ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ سو پوچھ لیجئے گنتی کرنے والوں سے، وہ فرمائیں گے نہیں رہے ہم مگر کچھ ہی پل رہے، کاش کہ تم ہوتے جانتے۔ دیکھیے ذرا، داعی دین اپنی زندگی کو بہت مختصر سمجھتا ہے، اسی لیے وہ انتھک کوشش کرتا ہے کہ کیا پتا اگلا دن میری زندگی کا ہے یا نہیں۔ وہ آرام پرست نہیں ہوتا ہے، ارے چھوڑو نا، کیا ضروری ہے کہ چلو چھوڑو نا آج میں آرام کرتی ہوں، کل کو سکھا دوں گی، پڑھا دوں گی جو سکھانا ہے پڑھانا ہے، کل کر لوں گی جو کام کرنا ہے۔ دیکھیے ایسی ایسی آیتیں مجھے سمجھ آئی، یہ آیتیں مجھے تھکنے نہیں دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سمجھا دے اپنا کلام جیسے کہ اس کو سمجھنا حق ہے، یقین کریے آپ بھی نہیں تھکیں گی کبھی۔ یعنی داعی دین سوچتا ہے کیا پتا اگلا، میں کل کو یہ کام کل پر چھوڑ رہی ہوں، کیا پتا کل کی میری زندگی ہے یا نہیں۔ یعنی جو نیکیاں آج مجھے لوٹنی تھی وہ نیکیاں میں کل پر چھوڑ رہی ہوں، کل میں اگر اس دنیا سے ہی نکل گئی تو میں تو بہت بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گی۔ تو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگ اپنی زندگی کو بہت یہ نہیں سوچتے اوہ ارے بہت لمبی زندگی ہے، ارے چھوڑو نا کل کو کر لیں گے، پرسوں کو کر لیں گے، نہیں، ایسا نہیں سوچتا ہے۔ یہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگ سوچتے ہیں ارے تمہیں کیا پتا بہت زندگی پڑی ہے، پڑھ لیں گے نمازیں، رکھ لیں گے داڑیاں، یہ کر لیں گے، حج کر لیں گے، عمرہ کر لیں گے، بہت زندگی پڑی ہے ابھی، آج کرنا ضروری ہے کیا؟ تمہیں کیا پتا اگلا پل بھی تمہاری زندگی میں ہے یا نہیں ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، اوکے، تو کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ دیکھیے کیا بول رہے ہیں، تم کیا گمان کرتے ہو کہ در حقیقت ہم نے تمہیں پیدا کیا یوں ہی بیکار؟ یہ ہر ایک بندے سے اللہ کا سوال ہے، ہر ایک سے سوال۔ تم کیا سوچتے ہو تمہیں میں نے بیکار ہی پیدا کر دیا؟ جانوروں سے تمہیں فائدہ پہنچا رہا ہوں، تمہیں یوں ہی چھوڑ دوں گا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں جاؤ گے؟ یہ سوچ لیا تم نے؟ تمہیں کیا عیش و آرام کے لیے، پارٹیز کے لیے، دن منانے کے لیے، اور تمہیں جھنڈیاں لگانے کے لیے اور میلادیں منانے کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا میں نے؟ اس رسول کو بھی میں نے اسی لیے بھیجا تھا کہ تم اس کو فالو مت کرو اور جا کے دوسروں کے سامنے ماتھا ٹیکو، اس زندگی کو یہی بیکار گزار کے میرے پاس آ جاؤ۔ نہیں، فتعال اللہ،
تو اللہ تعالیٰ انتہائی اعلیٰ ہے، حقیقی بادشاہ ہے، ان کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو رب ہے عرش عظیم کا۔ دیکھیں ذرا انسان یہ تو سوچے کہ کس کی طرف اس کو لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ پھر جو وہ پکارتا ہے اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو، یعنی اتنے بڑے بڑے کام کرنے والے رب کو چھوڑ کر جو دوسرے شخصیتوں کو پکارتے ہیں، بابا جی، پیر صاحب، بزرگ صاحب، ولی صاحب، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں لا برہان لہو بھی، میں نے تمہیں اس کی کوئی پرمیشن دلیل نہیں دی ہے، نہیں دی تمہیں۔ در حقیقت اس کا حساب تو اس کے رب کے پاس ہے، ختم ساری بات۔ اللہ تعالیٰ بولے آؤ میرے پاس، میں تمہیں ایسا حساب لوں گا نا تم سے، مجھے چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے تھے زندگی میں۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی فٹکار ان کے لیے۔ آیت نمبر 117 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے انہو لا یفلح الکافرون۔ بتائیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کسی بت کو پوجنے والے کو نہیں بول رہے ہیں، اللہ کے ساتھ اپنی حاجت کے لیے مشکل کشا سمجھنے والے، حاجت رواں سمجھنے والے، داتا سمجھنے والوں کو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں پہلی بات تو میں نے تمہیں اس کی کوئی اجازت نہیں دی۔ مسلمانوں کو اس سے بڑی کیا دلیل چاہیے کہ وہ کسی شخصیت کو نہ پکارے اللہ کو چھوڑ کر۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں دیکھیے شروع میں انٹروڈکشن دیا گیا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے یہ ایمان والے۔ آخر کہاں پہ ہو رہا ہے؟ بے شک ایسے کافر لوگ فلاح نہیں پاتے۔ کیا پتہ چلا؟ ایک انسان کا سارا اعمال، ایک بندے مومن کا سارا اعمال شرک کی وجہ سے سب بیکار ہو جاتا ہے۔ اور دعا کرتے رہیے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ دعا کیجئے اے میرے رب بس مغفرت فرما دیجئے، رحم کریے، آپ ہی سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اپنی زندگی میں تم نے اللہ کے سوا کسی کو پکارا ہے تو ابھی وقت ہے، معافی مانگ لو، ابھی بھی وقت ہے۔ معافی مانگ کے میرے حضور میں جھک جاؤ، ان پرانی میں معاف کر دوں گا، اور ایک توحید والی میری رضا کی زندگی گزارو۔ یہ تھی سورہ المؤمنون۔ اللہ اکبر، اتنی خوبصورت، مجھے تو بہت پسند ہے یہ سورت، بہت ہی زیادہ۔ کتنی چیزوں کا اللہ نے خلاصہ کیا۔ دوسرا پسند اس لیے بھی کہ اس سے بہت ساری ایسی آیتیں جس نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا، بہت ہی زیادہ۔ تو دیکھیے سن کر سمجھ کر زندگی میں جو ہے عمل کے طور پہ آیتوں کو لانے کی کوشش کریے، تبھی آپ کی کامیابی ہے۔ ادروائز ناکامیابی کی شکل اللہ تعالیٰ ضرور دکھائیں گے مجھے اور آپ کو اگر ہم نے آیتوں پہ عمل نہیں کیا تو۔ عمل کے لیے اللہ نے بھیجی ہے، سمجھ کر عمل کریے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔